So hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this video we are going to talk about the one shot series of mineral nutrition chapter. So हमारा 11th क्लास में सिर्फ 3 चैप्टर का सिलेबस बचा हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द प्लांट फिजियोलॉजी विद इन 3 डेज, जिसके बाद हमारी 11th जो है रैप अप हो जाएगी एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड टू जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, और उसके बाद हम हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे. So make sure that you listen to each and every point carefully in this video because this chapter is somewhat complicated because काफ़ी सारे elements के नाम हैं जो आपको यहाँ पर देखने पड़ते हैं, जो याद रखने पड़ते हैं. So it becomes very important for you guys to understand each and everything very easily. And second important thing कि जिस चीज़ में आपको ट्रिक्स की ज़रूरत हो या फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं विदाउट एनी डिले मैं कल यानी कि टुमारो आई एम गोइंग टू पोस्ट द ट्रिक्स ऑन दिस चैप्टर. मैं बिना किसी डिले के कल ही ट्रिक्स पोस्ट कर दूंगा जिससे आपकी एक अकॉर्डेंस में ये चैप्टर चलता रहे और आपको सारी की सारी चीज़ें साथ साथ याद हो जाए. आफ्टर दिस वीडियो यू कैन जस्ट व्यू द 5-6 minutes tricks and you will be thorough through each and everything. So if you have not joined me on Telegram, please join my Telegram channel Ozone Classes. If you are on Instagram, you can follow me up on Vipin Sharma Biology, which is my Instagram handle. Please subscribe to my new channel Nurturing Brains. The link of the channel will be provided in the description below. So please subscribe to this channel and press the bell icon so that you never miss an update from any of my channel. Alright? So let's talk about the mineral nutrition. Firstly, what are minerals and are they a part of nutrition? Yes. Minerals are the inorganic ions and they are very crucial for plants, for animals as well as for microbes. If you will talk about the cell, then the structure of cell itself contains a lot of things, a lot of vital things that are going to form the biomolecules. For example, let's say that there is carbon. So that carbon is going to form your carbohydrate, your lipid, your nucleic acid. Each and everything is formed up of carbon and hydrogen. But other than that, the oxygen is also present in your sugars. It is also going to be present in your nucleic acid. Okay, it is also going to be present in variety of compounds. Okay, if you will try to decipher the structure of an amino acid, then you will find oxygen over there as well. For example, in amino acid, what is the structure? This is the amino group, this is the acid group, this is the hydrogen, and this is the R group. So here also you are finding the oxygen. So there are always some sort of compounds which you require for the proper functioning, for the structural and functional perspective of any plant or animal or microbe. So these elements are really essential for the survival. So the basic needs of all the living organisms are the same. What are the basic needs of each and every organism? रोटी कपड़ा मकान हम जनरली बोलते हैं, बट अगर हम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पर देखें तो हम सबको क्या चाहिए? वी नीड टू compile up our food needs, our nutritional requirements, and if we will talk about the nutritional requirement, then the nutrition is also same. हम सबको कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है एनर्जी के लिए, हमें प्रोटीन चाहिए रहता है बिल्डअप के लिए. ओके, फैट्स जो है वो हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स. इन केस ऑफ प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स और द मेजर स्टोरेज फूड, एंड आफ्टर दैट द लिपिड इज वेरी एसेंशियल, okay, for the formation of membranes, and some lipid droplets are also required to store the food. After that your nucleic acid is basically going to form the genetic material, your DNA and the RNA. So ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, यही सबकी बेसिक नीड है. अगर आपको जिंदा रहना है, if you want to survive, then obviously you can easily survive on the basis of these biomolecules, because since we have already gone through biomolecule, you can easily analyze that why these biomolecules are important and what are their essential functions. So each and every living organism require macromolecules such as carbohydrate, which is going to give us energy, the protein, which is going to give us the buildup, then fats, which is for storage, the water that prevents dehydration, and it is the medium in which all the important reactions takes place. If you will talk about your blood, then your blood is formed up of what? Your blood is formed up of plasma and the formed elements. There are two important constituents. The first one is plasma and the second one is the formed elements. प्लाज्मा में आपका क्या है? प्लाज्मा में भाई 90 to 92% क्या है? आपका वाटर ही तो है. और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? आपके सेल्स हैं, जैसे कि आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ गई. तो प्लाज्मा इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट और उसमें भी जो आपका 90% से भी ज़्यादा भाग है पानी है. So water gives us the arena in which the complex reactions can take place.
ये हमें वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर सेल की आप बात करें, सो इनसाइड एवरी सेल मोर देन 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो रिएक्शन करोगे कहां पे, मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, और जिंदा रहने के लिए जो रिएक्शन होंगी उनके लिए वाटर जरूरी है। सो वाटर इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। देन मिनरल्स आर एसेंशियल, मिनरल्स आर एसेंशियल विच आर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, these are minerals, so they are also required for the growth and development of the plants. This chapter focuses on inorganic plant nutrition, and that's why the chapter is named as mineral nutrition, because minerals are inorganic in nature. So wherein you will study the methods to identify elements, okay, essential to growth and development of plant. हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा मिनरल्स प्लांट में एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, अगर डेफिशिएंसी है किसी मिनरल की तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये मिनरल्स आखिर सॉइल से एब्जॉर्ब किस तरीके से किए जाते हैं, और बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट अमाउंट, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे. सो दिस इज द इंडेक्स बेसिकली that what we are exactly going to read in this whole chapter. This is the index. okay, कि हम एलिमेंटल स्टडी से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग पहुंचेंगे कि किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, और फिर फाइनली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर पहुंच जाएंगे. सो मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. फर्स्टली किस तरीके से पता लगाया जाए कि प्लांट के लिए क्या क्या नेसेसरी है. सिंपल तरीका है, देखो मैं ये एक चीज बता रहा हूं तुम्हें कि सोनू और मोनू बहुत पक्के दोस्त हैं. अब आप इस चीज को प्रूव करके दिखाओ. ओके, मैं ये कह रहा हूं कि भाई सोनू और मोनू इतने पक्के दोस्त हैं कि 2 दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं जिंदा रह सकते. ठीक है, मैंने ये लाइन कही, सोनू और मोनू 2 दोस्त हैं जो 2 दिन भी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते अगर वो नहीं मिले तो. नाउ आई नीड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू सेपरेट सोनू एंड मोनू. सोनू और मोनू दोनों को अलग अलग कमरों में मैं बंद कर दूंगा 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद मैंने देखा कि सोनू भाई अपने कमरे में दबा के डोरेमोन देख रहा है टीवी पे, और मोनू जो है अपने कमरे में दबा के भाई खाना वाना खा रहा है, पिज्जा विज्जा मंगा रहा है. इन दोनों की दोस्ती सिर्फ एक छलावा था, सिर्फ एक ढोंग था, दिखावा था. इन दोनों की दोस्ती में कोई दम नहीं था, क्योंकि मेरी बात यहां पर गलत साबित हो गई. सो टू प्रूव माई स्टेटमेंट रॉन्ग, व्हाट आई हैव डन, आई हैव बाइफरकेटेड सोनू एंड मोनू, आई हैव डिवाइडेड देम. मैंने इन दोनों को अलग कर दिया. सिमिलरली what is the process by which I can understand that what elements are important? I am going to give plants the elements that it requires. समझ लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में मैंने प्लांट उगा रखा है, यहां पर मैंने इसे सारे एलिमेंट्स दे दिए. अब यहां से मैं ये एलिमेंट रिमूव कर देता हूं और समझ लो ये है नाइट्रोजन. जैसे ही मैंने नाइट्रोजन रिमूव किया, प्लांट मरने की कगार पर आ गया. देन आई कैन टेल यू गाइज दैट नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट. विदाउट नाइट्रोजन द लाइफ ऑफ प्लांट इज नॉट सस्टेनेबल. Similarly, if I have removed the carbon from this, I can also notice that what are the morphological changes happening in case of plant. Is it is getting yellow? Is it is getting dead? Are the leaf getting curled? क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे चेंजेस मैं नोटिस करने की कोशिश करूंगा, और उस हिसाब से मैं इनके सिम्टम्स डिफाइन कर दूंगा कि भाई मैंने जब नाइट्रोजन हटाया तो पत्ते पीले पड़ गए, जब मैंने कार्बन हटाया तो पूरा प्लांट पीला पड़ गया. सो दीज आर द सिम्टम्स. So after removing each and every element, I can know whether it is important for plant growth or not. Let's say I have removed an essential element. Okay, not the essential element. Essential तो जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए. समझ लो मैंने सोडियम हटा दिया, समझ लो सिर्फ दिस इज एन एग्जाम्पल, बिकॉज सोडियम के बिना सर्वाइवल इंपॉर्टेंट इम्पॉसिबल हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सोडियम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनायनिक एंड कैटायनिक बैलेंस. समझ लो, लेकिन मैंने सोडियम हटाया और प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. देन आई कैन कंक्लूड दैट सोडियम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. और समझ लो मैंने क्लोरीन हटाया और प्लांट की बैंड बच गई, तो मैं ये कंक्लूड कर दूंगा कि भाई क्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट. सो दैट्स हाउ वी ऑल यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय जूलियस वॉन सैक्स. इनका नाम आपने फोटोसिंथेसिस में जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो पीछे जाके वन शॉट पड़ा हुआ उसको देख लो. 1860 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन.
यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट अगर किसी प्लांट को दिए जाएं और उसमें प्लांट की रूट को डिप कर दिया जाए तो भी प्लांट मैच्योरिटी तक आराम से ग्रो किया जा सकता है, इवन विदाउट सॉइल। इट मींस दैट आपने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने सारे न्यूट्रिएंट्स डाले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जो भी इसे चाहिए उसको सारे डाल दिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में। सो दिस कैन ओनली बी डन आफ्टर स्टडी कि किस प्लांट को कितने कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाया, यहां पे मैंने लिखा है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है पिताजी का राज नहीं है कि मैंने 2 ग्राम सोडियम ले लिया और पानी में से धुआं निकलने लग गया, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, डिफाइंड मतलब मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे इतने मिलीग्राम ये एलिमेंट चाहिए, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल वैल्यू। थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो प्लांट की बैंड बच जाती है, बिकॉज अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो वो जहर का काम करेगी, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी। इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्सेस it is going to be toxic, and if anything is going to be present in less amount it is going to be deficient. So कोई चीज अगर कम है तो डेफिशिएंसी सिम्टम दिख जाएंगे, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा है तो उसके जहरीले गुण दिख जाएंगे, उसका ओवर एक्सप्रेशन अगर हो जाएगा तो भाई प्लांट तबाह हो जाएगा। सो दोनों ही चीजों के बीच में बैलेंस बनाकर यू नीड टू फाउंड एन ऑप्टिमम क्वांटिटी एंड यू नीड टू पुट ओनली दैट क्वांटिटी इन द डिफाइंड न्यूट्रिएंट solution. So इसीलिए यहां पर डिफाइंड वर्ड को मैंने यूज किया है। So here the soil is completely absent, the soil is not needed. Okay, this technique of growing plant in nutrient solution is called as hydroponics. Hydro का मतलब water. So water में आपने nutrients मिलाए हैं और आपने पौधा उगा लिया, so इसे आप hydroponics कहेंगे, इसमें कहीं भी soil का नाम नहीं आया। So what you will do, you are going to determine the mineral nutrients that are essential for plants. यानी आपको यह पता करना है कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पता कैसे करेंगे, आप जो है एक सॉइल फ्री कल्चर में यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट को उगा लीजिए डिफाइंड मीडियम सोल्यूशन में, और आप जो है अब इसमें ऐड करके देखिए काफी सारे एलिमेंट्स। व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड एन एलिमेंट आपको पता लग जाएगा उस एलिमेंट के इल इफेक्ट्स क्या है, या फिर अगर प्लांट की ग्रोथ और बेहतर हो गई तो आपको पता लग जाएगा दैट एलिमेंट वाज गुड। अगर कोई एलिमेंट आपने सब्स्टिट्यूट किया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के जगह आपने मैंगनीज डाल दिया, तो आपको पता लगेगा कि प्लांट में क्या चेंजेस आए, उनको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और पत्तियां पीली पड़ गई तो आपको पता लग जाएगा दैट यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी दैट अकर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ दैट एलिमेंट और मिनरल। सो यहां पर ये चीजें भी आपकी प्रोमिनेंट होती हैं। सो यू कैन इजीली डिवाइव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप लोग आसानी से जो है अपना कंक्लूजन बना सकते हैं ये जानकर कि आखिर मैंने ये एलिमेंट डाला तो क्या हुआ और ये एलिमेंट मैंने हटाया तो क्या हुआ। इस तरीके से आप लोग चीजों को ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि किस एलिमेंट का प्लांट पर क्या प्रभाव है और वो प्रभाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दीज मेथड्स रिक्वायर्ड प्योरिफाइड वाटर। हाइड्रोपोनिक्स में प्योरिफाइड वाटर तो होना ही चाहिए और उसके अंदर आप लोग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट जो है नाप नाप कर ऐड करेंगे। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर इज एयर। आपके प्लांट को एयर की बहुत जरूरत रहती है। सो एयर जो है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है। सो दिस मिनरल सोल्यूशन इज कॉन्स्टेंटली एरेटेड। इसके ऊपर एक सिस्टम लगा रहता है जिससे एयर कॉन्स्टेंटली आपकी इस सिस्टम के अंदर पंप करती रहती है सो दैट योर प्लांट कैन ग्रो वेरी वेल। ओके, ऑल राइट। So now let's talk about this system. This is the diagram or the typical setup of nutrient solution culture. यानी हाइड्रोपोनिक्स का बेसिकली एक छोटा सा पार्ट आपको यहां पर दिखा रखा है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर लिया, प्योर वाटर, और इस प्योर वाटर में यू हैव एडेड द न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन दिस प्योर वाटर। हियर दिस इज द एरेटिंग ट्यूब which is inserting the air from the atmosphere inside this particular chamber. So all the three important things are present: water, minerals and the air. So it is complete. Then funnel is present over here which is adding the fresh water and nutrients to the this chamber whenever it is needed. Okay, whenever the new water or minerals are needed they will be provided by this funnel. And this is the cotton by which this particular thing is logged. Okay, these all things are logged by the cotton so that the plant can grow well and nothing can interrupt this process. So this is about the hydroponics. Okay, so by this method essential elements were identified because you got to know that what important elements are imparting good results in the plant growth. So आप उन्हें essential consider कर सकते हो और आपको यहाँ पर यह भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने नाइट्रोजन रिमूव किया तो क्या सिम्टम्स हुए, मैंने ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या सिम्टम्स हुए। सो हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहाँ पर पता लग जाते हैं हर एलिमेंट के बारे में।
सो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये सक्सेसफुली एम्प्लॉय करी जाती है एज अ टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी ये सच में भी किया जाता है। जैसे डाइबर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है आपका हाइड्रोपोनिक्स प्लांट है, ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ के आसपास। ओके, सो पिथौरागढ़ में जो डाइबर है बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोपोनिक आपको वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपके टोमेटो भी उगाए जाते हैं, आपका सीडलेस खीरा वहाँ पर उगाया जाता है, एंड लेट्यूस वगैरह जो है कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, एंड टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ इन दिस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, the nutrient solution is constantly aerated. It means that the air is constantly pumped in this chamber so that the plant can grow well, because हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, that can come from the air. So now this is the hydroponics. ऐसे ये प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट कैसे है, यहां पर आपका न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। ओके, दिस इज द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चैम्बर एंड हियर देयर इज अ पंप विच इज प्रेजेंट। पंप मींस इसको आप मोटर बोल सकते हो। सो ये जो आपका पाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पाइप, ये पाइप थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। इट मींस दैट इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज समहाउ टिल्टेड। सो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मोटर से पानी फेंका गया आपका इस साइड, ऊंची साइड में, ठीक है, और ऊंची साइड में अगर पानी आ गया तो अब ये बह के नीची साइड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें आपको पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वाटर इज पम्प्ड एंड द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस आर पम्प्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिना, एंड फ्रॉम दैट द वाटर कैन फ्लो पैसिवली, and this is going to just tilt the roots, it is going to disturb the roots so that the growth can occur. ओके, यहाँ पर जो रूट्स हैं इनसे पानी होता हुआ जाएगा। सो यहाँ पर पानी भी मिल रहा है, इसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, एयर भी मिल रही है, सारी चीजें यहाँ पर पंप होती जा रही हैं। सो प्लांट आपका ऑब्वियसली अच्छी ग्रोथ शो करेगा। सो ऐसे एक पाइप में काफी सारे प्लांट्स उगा दिए जाते हैं और उनमें से आपका कॉन्स्टेंटली जो मिनरल सोल्यूशन है वो पंप होता रहता है। सो दिस चैम्बर इज प्रेजेंट एट स्लाइट इंक्लाइन, यानी बिल्कुल बराबर नहीं रहता, थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, ऊपर नीचे रहता है। क्यों? जिससे पानी आपको एक जगह पंप करना पड़े, दूसरी साइड में पानी अपने आप पहुंच जाए। सॉल्यूशन फ्लोज डाउन पैसिवली, अपने आप सॉल्यूशन नीचे आता है, और रूट जो है वो कंटिन्यूअसली आपकी बात होती रहती है मिनरल सॉल्यूशन में, सो दैट ग्रोथ इज गोइंग टू बी क्वाइट कंटिन्यूअस। सो असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की अब हम बात करते हैं। ऐसे मिनरल एलिमेंट्स जो बहुत असेंशियल है, जिनके बिना सर्वाइवल नहीं हो पाता। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? बेसिकली वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट इन मॉर्फोलॉजी एंड योर एनाटॉमी। सो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हमने देखा रूट का मेन काम क्या रहता है। रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो मिनरल्स वर्ड वहां पे आया तो था ना भाई, और वाटर एंड मिनरल्स तो एब्जॉर्ब होंगे ही, और ये इसमें हेल्प कौन करेगा? रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? एपिडर्मल रूट हेयर्स विच आर गोइंग टू बी यूनिसेलुलर इन नेचर। सो ये यूनिसेलुलर एपिडर्मल रूट हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करेंगे आपके इस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सो मोर देन 60 एलिमेंट्स आउट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स सो फार, दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। यानी कि 105 एलिमेंट्स में से मोर देन 60 एलिमेंट्स आपके रूट से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ओके, सम प्लांट्स स्पीसीज अक्यूमुलेट सेलेनियम, कुछ प्लांट्स में इवन सेलेनियम तक अक्यूमुलेट हो जाता है बेसिकली, जैसे एस्ट्रागैलस एंड प्रिंस प्लूम। ये नाम आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एस्ट्रागैलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें सेलेनियम आपका प्रॉमिसिंगली प्रेजेंट रहता है। कुछ प्लांट्स में गोल्ड तक एब्जॉर्ब होता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ प्लांट्स आपके आसपास ही मिलते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड। एक साइंटिस्ट ने अभी डिपिक्ट किया था कि मस्टर्ड के आसपास जो है आपको गोल्ड मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड की खाने मिलेंगी, लेकिन मस्टर्ड में कहीं ना कहीं आपको गोल्ड एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दिया गया है। एज वेल एज जो डीप रूटेड यूकेलिप्टस होते हैं, जो सफेदे के प्लांट हैं आपके डीप रूटेड, बहुत ज्यादा डीप जिनकी रूट प्रेजेंट है, काफी बार वो उन इलाकों में प्रेजेंट रहते हैं जहां पर आपकी प्रॉमिसिंग गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं। सो यूकेलिप्टस एंड मस्टर्ड आर गोइंग टू बी प्रेजेंट नियर द गोल्ड, और वी कैन से दे कैन एक्विप द गोल्ड। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम कहां प्रेजेंट रहेगा? समझ लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहां पर न्यूक्लियर चीजों को टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को, तो वहां पर फोड़ा फाड़ी करके देखी जाती है, तो उससे क्या निकलता है? स्ट्रोंशियम निकलता है। तो उस मिट्टी में स्ट्रोंशियम आ गया, तो जब प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके नॉर्मल जो आपके मिनरल्स हैं उसके साथ स्ट्रोंशियम भी ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पिगनट हिकोरी। सो पिगनट हिकोरी और द स्वीट पिगनट आर गोइंग टू बी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जिनमें आपका रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम आपको देखने को मिलता है। ओके, बट देखना यह है क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सच में नेसेसरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए?
या फिर नॉर्मली इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं रहता, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी डू हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट इवन द लेसर क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻8 ग्राम पर ml. अगर 1 ml सोल्यूशन जो कि ऑलरेडी बहुत कम है और उसके अंदर 10⁻⁻8 ग्राम तक भी कोई चीज प्रेजेंट है, यानी 1 माइक्रोग्राम से भी अगर कम चीज प्रेजेंट है ना पर ml, उसको भी आप लोग बहुत ही एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर सकते हो. ऐसे डिटेक्टिंग मेजर्स आप लोगों के पास प्रेजेंट हैं. सो दैट्स व्हाई दिस small amount of gold, the small amount of selenium, even the trace elements can be easily detected by us because we are having the technology to detect even the smallest amount of these elements. Okay. Now criteria of essentiality. कैसे बताएं कि कोई चीज essential है और कैसे बताएं कि कोई चीज normal है. The criteria of essentiality is given over here. पहली बात, जो element होगा, जो essential होगा, दैट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी. मस्ट वर्ड यूज किया गया है. मस्ट मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मस्ट होना चाहिए तो होना ही चाहिए. इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अगर ये एलिमेंट नहीं हुआ तो ग्रोथ भी नहीं होगी, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी, अल्टीमेटली द प्लांट विल डाई. सो इट इज द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ एनी प्लांट. इन एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट द प्लांट विल नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. मतलब ये इतना जरूरी है, जैसे आप लोगों के लिए सांस लेना जरूरी है, उतना जरूरी है एलिमेंट होगा किसी भी प्लांट के लिए. द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक. यानी एक बंदे का काम दूसरा नहीं कर सकता. जैसे हम सबकी लाइफ में क्या है, मॉम इज अ थिंग दैट इज अनरिप्लेसेबल. ओके, किसी पड़ोसी आंटी को अगर हम बोले कि हमें माँ का प्यार चाहिए तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो हमारी माँ नहीं है. सो हमारी माँ का काम सिर्फ माँ ही कर सकती है. सो दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट रिप्लेसेबल. दोस्त हैं, काफी बार धोखा दे जाते हैं, दूसरे दोस्त आ जाते हैं, दे आर रिप्लेसेबल. कुछ पक्के ही यार हैं तो वो भी नॉन रिप्लेसेबल की कैटेगरी में आते हैं. लेकिन जो कुछ पार्ट हैं जिनके बिना भाई सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट. इन अदर वर्ड्स, द डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट. यानी समझ लो कि भाई भूख लगी है, अब उस टाइम पे रोटी मिल जाए, पराठा मिल जाए, नान मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, साला सूखी पत्ती तक मिल जाए, मैं खा जाऊंगा क्योंकि भूख लगी है. सो दीज आर अनरिप्लेसेबल थिंग. लेकिन अगर पानी है तो पानी के टाइम पे भाई पानी ही चाहिए. उस टाइम पे कितना ही तुम दूध पी लोगे, कितना ही जूस पी लोगे, एक टाइम पे तो आके रो दोगे भाई कि पानी चाहिए ही चाहिए. सो एक चीज की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता. अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो भाई इसका काम यही करेगा. इन सम ऑफ द केसेस इट कैन बी रिप्लेस्ड, बट ओवरऑल मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. समझ लो अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात आ गई तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में अब आयरन थोड़ी आके जुड़ जाएगा, सेंटर पे तो मैग्नीशियम को ही प्रेजेंट होना पड़ेगा. समझ रहे हो. थर्ड क्राइटेरिया, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म. मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्ट रोल होगा. जैसे कि मैग्नीशियम है आपका और मैंगनीज है, किसमें काम करते हैं, आपके रेस्पिरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपका ग्लाइकोलिसिस वगैरह में डायरेक्ट काम करते हैं. ओके, मोलिब्डेनम है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो दीज आर शोइंग द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशंस. पहली बात, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. दूसरी बात, इनके बिना जीवन नहीं है. तीसरी बात यह है कि डायरेक्ट इनका रोल होता है मेटाबॉलिज्म में. So based upon the above criteria, only a few elements have been found to be the absolutely essential elements. यानी आपके जो more than 60 elements आपके absorb हो रहे थे via root from the soil, उनमें से सिर्फ कुछ ही elements हैं जो absolutely essential हैं. They are usually 17 in number. Okay? और इनको भी आप फिर डिवाइड करते हो into two categories, micro and macronutrients. As the name indicates, macronutrient will be macro. यानी कि इनको ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना होगा. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विल बी कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि थोड़ा कम क्वांटिटी में भी प्रेजेंट होंगे तो काम चल जाएगा. ये थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं पर ड्राई मैटर, एंड ये आपके ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, द टोटल नंबर इज 17. ओके, तो यहां पर आपका बहुत जरूरी है इन चीजों को देखना कि ओवरऑल बहुत सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ 17 ही आपके मोस्ट एसेंशियल हैं और उनमें भी माइक्रो और मैक्रो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है. सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? आई हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रिक ऑन दैट, प्लीज गो थ्रू द ट्रिक. सिर्फ आपको टाइप करना है ट्रिक टू अंडरस्टैंड माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट बाय ओजोन क्लासेस. ओजोन क्लासेस लिखना मत भूलना वरना किसी और की वीडियो खुल जाएगी.
माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट ट्रिक बाय ओजोन क्लासेस, मैंने बोर्ड पे बनाई हुई है वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी, पसंद भी आएगी, याद भी हो जाएंगी सारी चीजें, दैट इज अ श्योरिटी। सो दे आर जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट क्या है? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर मतलब वाटर कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। समझ लो एक सोल्यूशन है आपका जिसमें 10 केजी का टोटल आपका भार है और 10 केजी में से 2 केजी आपका वाटर है, 8 केजी आपका बची हुई चीजें हैं। So we are going to talk about the dry weight here. We are not going to consider it as 10 kg. We are going to consider it as 8 kg. So ये जो आपका ड्राई वेट है, इसके पर किलो ड्राई वेट में अगर 10 मिलीमोल तक कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई मिनरल प्रेजेंट है, वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं कौन सा पीके का मग। ओके, कौन सा पीके का मग, यानी पीके अगर किसी मग में पानी पीता है, मल्टीपल कप्स हैं उसके पास, तो उनमें से कौन से को हम यूज करें वो पूछा जा रहा है। सो कौन, CHON, सा का मतलब सल्फर, पीके, ओके, सो हियर इज फॉस्फोरस, K means potassium, okay, PK का that is calcium and mug simply means Mg that is magnesium. So कौन सा PK का मग, यहां पर क्या हो गया, आपके 9 एलिमेंट्स आपको याद हो गए, ये आपके 5 और ये आपके 4, 9 एलिमेंट्स हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें से आपके CO2 और वाटर से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या क्या आ सकता है? CO2 से आपका कार्बन आ सकता है और ऑक्सीजन आ सकता है, वाटर से भी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ सकता है। तो आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स आपके CH और O जो हैं ये आपके वाटर और CO2 से आ सकते हैं, एंड बचे हुए जो आपके 6 एलिमेंट्स हैं ये आपको वाया रूट जो है एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। सो अदर्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, और जो CHO है ये आपके आ सकते हैं फ्रॉम द वाटर एंड CO2। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन्हें आप ट्रेस एलिमेंट बोलते हो क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, यानी लेस देन अगर 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई वेट ये प्रेजेंट है तो इन्हें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलोगे। एंड आपके जो ये हैं एग्जांपल्स, दीज आर आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। सो आपका ट्रिक है यहां पर मोबाइल चार्जर। ओके, सो MO सिंपली मीन्स योर मोलिब्डेनम, ओके, B simply means your boron, and after that your CH or charger simply means here your chlorine. Now बचे हुए का क्या करें, आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन चीजों को लिख दीजिए एलिमेंट को, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक सीक्वेंस में है ना सारे के सारे, अगर आप स्टार्टिंग अगर थर्ड लाइन की बात करते हो देन बेसिकली ये सारे एकदम सीक्वेंस में है। अगर आप 21 से 30 तक एलिमेंट गिनोगे आपको ये मिल जाएंगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो मैंगनीज यहां पर हो गया है, ओके, आयरन हो गया है, कोबाल्ट यहां पर नहीं है। कोबाल्ट यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बेनिफिशियरी एलिमेंट में आता है, तो कोबाल्ट मैं आपको अलग से याद करा दूंगा, सो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। निकल यहां पर हो गया है, ओके, कॉपर यहां पर हो गया है और जिंक यहां पर हो गया है। सो जिंक यहां पर हो गया है एंड कॉपर यहां पर हो गया, मतलब सारे आपके एलिमेंट हो गए, 8 के 8 एलिमेंट हो गए। दीज आर द 3 एलिमेंट्स एंड आफ्टर दैट these are going to be 5 element because copper is not this cobalt is not included as cobalt is present in the beneficiary element. so ये जो आपके 17 एलिमेंट्स हैं ये आपके मोस्ट एसेंशियल हैं। इनके अलावा काफी बार हायर प्लांट्स में आपको बेनिफिशियल एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जिनका नाम है कोना शीशे। यानी कि आप जब कोने में शीशे रख दोगे, अदरवाइज बीच में रखोगे तो टूट जाएंगे, तो कोना शीशे आर बेनिफिशियल। ओके, सो हियर को मींस योर कोबाल्ट जो कि अब ऐड हो चुका है, ना मींस सोडियम, सी मींस योर सिलिकॉन Si एंड Se मींस सेलेनियम। सो कोना शीशे सिंपली मींस योर बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ओके, सो दीज आर सम ट्रिक्स जो कि हमने यहीं पर डिस्कस कर ली, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ी डिटेल में चीजें बताई हुई है मैंने और काफी इनके इंपॉर्टेंट रोल्स भी बताए हुए हैं। सो ये कुछ हायर प्लांट्स में यूज करी जाती हैं। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स 4 अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये किस किस काम आते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज दैट दे आर
present in the biomolecules? How? For example, कार्बन आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स में होगा, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन आर टू एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल बायोमोलिक्यूल्स. विदाउट देम नो ऑर्गेनिक केमिकल कैन बी फॉर्म्ड. क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो, कार्बन और हाइड्रोजन की तो केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बिना तो कोई बनेगा ही नहीं. सो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, देयर इज नथिंग विच कैन फॉर्म विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन. इनमें तो दिक्कत है ही नहीं. ऑक्सीजन आपको शुगर्स में मिल जाएगी. ग्लूकोज में जब आप देखते हो तो CHOH ऐसे लिखा रहता है. सो CHOH स्टार्टिंग में आपके एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ऑल दीज आर गोइंग टू कंटेन द ऑक्सीजन. अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स में देखो आपके नाइट्रोजनस बेसिस में, तो काफी जगह आपको ये वाले जो बॉन्ड है आपको देखने को मिलते हैं, डबल बॉन्ड O. काफी बार आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर अटैच रहता है. ओके, ये थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं. काफी बार डबल बॉन्ड O के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा. ओके, लिपिड में आपका क्या रहता है, फैटी एसिड रहता है. एसिड मींस आखिरी कंपोनेंट उसका ये रहेगा, तो इसमें भी ऑक्सीजन आ गए. सिमिलरली आप अगर देखें यहां पर अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड में भी एसिड होगा ना भाई, तो इसमें भी ऑक्सीजन आएंगे. नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजनस बेसिस में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ही. प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड के फॉर्म में अमीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट. सो दीज CHON आर बेसिकली द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं. कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आपके एनर्जी रिलेटेड केमिकल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल योर ATP. ATP क्या है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो यहां पे 3 फॉस्फेट लगे रहते हैं, और ये ATP आपकी एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की. सो एनर्जी करेंसी जो है ये भी आपकी किसकी बनी है, एलिमेंट्स की मिलकर बनी है ना. सो मैग्नीशियम जब आपका क्लोरोफिल में होता है, so that is also forming an energy related compound, because this chlorophyll is going to trap the light and it is going to form the sugars. and phosphorus आपका ATP में प्रेजेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहां पर, तो फॉस्फोरस भी 3 प्रेजेंट होंगे ना. सो दैट्स व्हाई फॉस्फोरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ATP. यहां पर जब फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटते हैं तब आपकी एनर्जी रिलीज होती है. सो देयर आर 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, phosphoanhydride bonds which are present over here. और जो आपका सबसे पास रहता है शुगर के, वो आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड रहता है, जो कि यूजुअली नहीं तोड़ा जाता. ओके, सो दिस इज एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड. थर्ड, असेंशियल एलिमेंट्स कैन एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम. नाउ आपको एंजाइम मैंने पढ़ाया है बायोमोलिक्यूल्स में, आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में पता है, आपको कोएंजाइम्स के बारे में पता है कि समटाइम्स एन एंजाइम रिक्वायर एन एलिमेंट और रिक्वायर अ विटामिन, जिससे कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इसको एक्टिवेट किया जा सके. सो जो प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसको आप लोग कह रहे थे अपो एंजाइम. जो आपका कोफैक्टर कोएंजाइम है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेसिकली, ओके, इसको आप बेसिकली आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं. सो जब ये साथ में जुड़ेंगे तो आप क्या बनाएंगे, आप एक होलो एंजाइम बनाएंगे विच इज एक्टिव, बिकॉज एपो एंजाइम आपका इनएक्टिव था. जब इसके ऊपर प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर लगा तब ये जाकर एक्टिव हुआ. ओके, फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीशियम जो है, ये आपका रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा एज वेल एज पेप कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा. ये दोनों एंजाइम हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ लिए हैं. रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी थी, और आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप कार्बोक्सिलेज है, ये भी आपको देखने को मिला था C4 के अंदर. जिंक जो है दोस्तों, जिंक आपका यहां पर काम आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के फॉर्म में. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला आपका जो एलिमेंट है दैट इज जिंक. एंड मोलिब्डेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान होने वाला नाइट्रोजिनेज जो है एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, वो आपका यहां पर प्रेजेंट होगा. ओके, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आपका यहां पर हो गया पोटेशियम. पोटेशियम का रोल हमने क्या देखा था, पोटेशियम का रोल हमने देखा था कि ये गेट्स को ओपन कर सकता है, किसके, स्टोमेटा के. सो स्टोमेटा का जो पोर था उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम किया था पोटेशियम आयंस का था. सो पोटेशियम आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ओके, सो यहां पर क्या है, वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में भी ये काम करते हैं. काफी सारे एलिमेंट्स आपके वाटर पोटेंशियल में काम करते हैं, इंक्लूडिंग द पोटेशियम.
सो दोस्तों यहां पर 4 कैटेगरी हमने बनाई। पहली है आपकी स्ट्रक्चरल, जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट आर गोइंग टू बी द बायोमोलिक्यूलर कंपोनेंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद हमने वो देखा जो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इन केस ऑफ क्लोरोफिल एंड फॉस्फेट इन केस ऑफ एटीपी। उसके बाद हमने देखा देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कोफैक्टर, जैसे कि आपका जिंक जो है वो आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। आपका जो मैग्नीशियम है वो पेप कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा, रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा। मोलिब्डेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इट विल बी एक्टिवेटिंग द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, इसके साथ साथ कुछ जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी अभी हमने जो 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनका हम लोग एसेंशियल जो फीचर है वो देखने वाले हैं, और इनके काफी फीचर रहते हैं। वी नो वेरी वेल कि ये स्ट्रक्चर में भी काम आ सकते हैं एज इन बायोमोलिक्यूल्स, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी काम में ला सकते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कर सकते हैं। सो देर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, ये सेल डिवीजन में भी काम आ सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डन विद दोज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये काफी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल को मेंटेन करना, मेंटेनेंस करना ऑस्मोटिक प्रेशर का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने देखा था दैट देयर आर सम कॉपर कंटेनिंग सेंटर्स, देयर आर सम आयरन कंटेनिंग सेंटर्स, ओके, देयर आर सम सल्फर कंटेनिंग सेंटर तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कॉपर और आयरन कंटेनिंग सेंटर्स जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखे थे, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे इन द फंक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन। बफरिंग एक्शन यहां पर हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेट वगैरह करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना, जो कि हमने अभी मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और जिंक के बारे में पढ़ा था जस्ट पिछली स्लाइड में। एंड दे कैन ऑल्सो वर्क एज कोएंजाइम, जस्ट एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां से मिल रहा था? वाटर, और आपके आपको बेसिकली वाटर से मिल जा रहा था और CO2 से मिल जा रहा था, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स। लेकिन बचे हुए सारे आपको किससे लेने थे? सॉइल से। एंड स्ट्रक्चर में आपके 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीनों तो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, ये तो आपको भाई पूरा पूरा सॉइल से उठाना पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट यूज्ड टू बी टेकन फ्रॉम द सॉइल। सो यहां पर ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। सेकेंडली, ये नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में भी हो सकता है और अमोनियम आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है। इन तीनों फॉर्म में ये उठाया जा सकता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फटाफट डिवाइड करते हैं उनमें इनकी ज्यादा जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो लाने पड़ेंगे आपको डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। जब आप सेल को डिवाइड करोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, देन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यू नीड टू रेप्लिकेट द डीएनए, और डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए क्या ऐड करने पड़ेंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन तो चाहिए ना भाई एक्टिव सेल्स में। सो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स रहते हैं इनमें नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो ये जो मैं रीजंस बता रहा हूं, दीज आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। हर चीज का जो मैं रीजन बता रहा हूं भाई वो नोट करते रहना साथ साथ। ओके, साथ साथ चाहे वीडियो थोड़ी पॉज कर लो, दैट्स व्हाई इसको प्रीमियर पे नहीं लगा रहा हूं मैं, इसको मैं डायरेक्टली अपलोड करूंगा। आप लोग पॉज करके बीच बीच में थोड़ी बहुत चीजें एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर सकते हो। सो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आर फॉर्म्ड अप ऑफ अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले अमीनो ग्रुप को पाओगे, और अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे भारी है। हाइड्रोजन की औकात ही क्या है? इसका देखो यार, क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट? 1। नाइट्रोजन देखो इसके कंपैरिजन में कितना भारी है। सो ओवरऑल तो आपका चीजें नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी ना, उसको फेवर करेंगी। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट वन इन केस ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन ही होगा, नाम ही नाइट्रोजन पे रखा हुआ है, सो उसमें प्रेजेंट होगा। विटामिन में कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मिलता है। एंड हॉर्मोन्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स, तो साइटोकाइनिन वगैरह यहां पर बहुत अबंडेंट होते हैं नाइट्रोजन में। ओके, जिनमें इंडोल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो वाले हॉर्मोन्स भी यहां पर बहुत बहुत अबंडेंसी शो करते हैं नाइट्रोजन की। और ह्यूमंस में अगर आप बात करें हॉर्मोन्स की, तो देयर आर अ लॉट ऑफ अमीन हॉर्मोन्स विच आर प्रेजेंट। ओके, हमने क्या पढ़ा था? कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स, अब नाम में क्या था? कैटेकोल अमीन्स। सो यहां पर अमीन आ गया था ना उन हॉर्मोन्स के अंदर, हमने देखा भी था उनके स्ट्रक्चर को भी। ओके, सो दिस इज अबाउट द
नाइट्रोजन। बट ये वाले जो चीजें आपके बताए हैं, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज दिस पर्टिकुलर थिंग, इससे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली नहीं ले सकते आप। नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इतना स्ट्रांग बॉन्ड है भाई, तोड़ते तोड़ते बॉडी की सारी एनर्जी निकल जाएगी। इसको तोड़ने की हैसियत हमारी नहीं है, ना किसी प्लांट की है। इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही तोड़ सकते हैं बायोलॉजिकली। सो उन प्रोकैरियोट्स के साथ प्लांट कुछ संबंध बनाते हैं और उस एसोसिएशन से आपके नाइट्रोजन को बायोलॉजिकली फिक्स किया जाता है एंड आफ्टर दैट प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट क्लिप में पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉस्फोरस जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट ओके इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, जो कि H2PO4 और HPO4 दोनों तरीके से हो सकते हैं। फॉस्फोरस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई होती है लिपिड से और इसके बीच में पड़े हुए प्रोटीन से। अब ये जो लिपिड थे, कैसे लिपिड थे, अगर आपको याद हो सेल चैप्टर, देन दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। इनका ये जो पोलर हेड होता है, ये जो हेड मैं बना रहा हूं यहां पर, आपके फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज आर द पोलर हेड्स विच आर ऑब्वियसली हैविंग द फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड विद इट। सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड। सो सेल मेम्ब्रेन्स में तो आपका होगा, प्रोटीन्स में भी हो सकता है, बिकॉज प्रोटीन्स पे भी आपके फॉस्फेट अटैचमेंट्स होते हैं, ओके, दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज द फॉस्फोप्रोटीन्स। ऑल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉलीमर बन चुका है। सो न्यूक्लिक एसिड किस चीज का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, सबसे पहले आपका नाइट्रोजनस बेस आया, ओके, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर आपकी शुगर लग गई और इस शुगर के साथ आपके फॉस्फेट बॉन्ड्स यहां पर लग गए, तो आपका न्यूक्लियोटाइड बना। सो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है, तो सो दैट्स व्हाई फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस मतलब जिन रिएक्शन में फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, यानी ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट हमने चिपका दिया। सो दिस इज अ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। सो एक फॉस्फेट से एक फॉस्फेट तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगले रिएक्शन में इट बिकम्स फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी यहां पर 2 फॉस्फेट आ गए आपके फ्रक्टोज पे, फर्स्ट और 6th पोजीशन पे। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा फॉस्फोराइलेट हो गया। सो एक आपका फॉस्फेट इस पोजीशन पर अटैच हुआ और एक फॉस्फेट आपका इस रिएक्शन में और भी ऐड हुआ, ओके। सो इस तरीके से आपके फॉस्फोरस में आपने देखा। पोटेशियम, पोटेशियम K+, हमने अभी अभी कहां पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, एज वेल एज उसके साथ साथ ये जो है आपका काफी बार बाकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, एनायनिक और कैटायनिक कंसंट्रेशन को। सो इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज, क्योंकि आयन कैटायन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें आपका पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, आपका सोडियम इंपॉर्टेंट होता है एंड आपका क्लोरीन। सो जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा दैट ऑल दीज 3 मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर एनायनिक एंड कैटायनिक बैलेंस। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, ग्रोइंग बर्ड्स में, यंग लीफ में और रूट की टिप में, यानी जो ग्रो करने वाले, जो डिवाइड करने वाले सेल्स हैं, इनमें ये मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन एनायनिक कैटायनिक बैलेंस, ये बात हो चुकी है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो पोटेशियम की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत लो है तो आपके अमीनो एसिड जो है ये जो आपके अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है, ये आपका फर्दर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए आपको अमीनो एसिड जोड़ने पड़ेंगे, बट ये अमीनो एसिड कभी नहीं जुड़ पाएंगे अगर आपकी पोटेशियम की क्वालिटी लो है या क्वांटिटी लो है तो। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका रोल है ही। एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, सो ये मोर देन 60 एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है, ओके, विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन और स्टार्च मेटाबॉलिज्म। यानी आपके प्रोटीन बनाने वाले या फिर ग्लूकोज से स्टार्च बनाने वाले जो रिएक्शन है, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रहते हैं उनको आपका एक्टिवेट कर सकता है पोटेशियम। एंड सेल्स में टर्जिडिटी मेंटेन करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट होता है। सो बोथ ऑफ द पॉइंट्स आर लिंक्ड।
कैल्शियम हमारा सबका प्यारा, कोलगेट दे कैल्शियम को ताकत। सो वही वाला जो कैल्शियम है ये हम पढ़ेंगे, हमारे हड्डियों का, हमारे दांतों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लांट में क्या क्या करता है। सो प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करेगा? कैल्शियम आयन की फॉर्म में। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो बार बार डिवाइड कर रहे हैं। इफ दे आर डिवाइडिंग रैपिडली देन दे आर ऑब्वियसली फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स। अगर वो बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नया सेल बन रहा है तो उसके ऊपर सेल वॉल भी तो लगेगी, सेल मेम्ब्रेन भी तो बनेगी। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेसेसरी, बिकॉज कैल्शियम किस चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट था? सेल चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेमेला, मिडल लेमेला विच इज फॉर्म्ड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, यानी ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से रिलेटेड है। सो आपके जो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज हैं जो रेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं उनमें सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ये करवाएगा, बिकॉज ये मिडल लेमेला का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है। सो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जो फंक्शन है वो सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अदर देन दैट इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। सेल डिवीजन के दौरान जो आपके माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स की जनरेशन होती है, उसमें भी ये हेल्प कराता है। इट अक्यूमुलेट्स इन द ओल्डर लीव्स, ये जो है आपके सेनेसेंट पार्ट्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच मोबाइल। ये मोबाइल जो है नहीं होता, सो ये आपका ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट्स में भागकर नहीं जा सकता। सो ये जहां पर आपके ओल्डर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है वहीं पर प्रेजेंट रहता है, कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। ओके, इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स, सो ये आपके काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। एंड यहां पर मैंने लिखा है सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस। सीरीन और थ्रियोनिन जो है ये आपके क्या रहते हैं? ये आपके अमीनो एसिड रहते हैं। सो इन सीरीन और थ्रियोनिन के ऊपर काइनेजेस क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं। काइनेज, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ना यहाँ पे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट को ऐड करने का काम किसका रहता है? हेक्सोकाइनेज का। सो काइनेज एंजाइम या फिर फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम एक ही बात है। सो कैल्शियम क्या करता है? इन काइनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सो इसीलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि ये आपका उस पिगमेंट के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में सबसे सेंट्रल पार्ट जो रहेगा वो आपका मैग्नीशियम रहता है। एज वेल एज ये राइबोसोम स्ट्रक्चर और उसकी असेंबली में भी हेल्प करता है, यानी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आपकी टिपिकली हाई रहनी चाहिए, तभी आपकी राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं साथ में आकर जुड़ती हैं और उसी हिसाब से वो आगे प्रोटीन सिंथेसिस कर पाती हैं। आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S रहता है एंड यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में इट इज 80S, और इनके भी दो सब यूनिट्स रहती हैं, यहाँ पर 60-40 और यहाँ पर 50-30। सो ये जो सब यूनिट्स हैं इनका एक दूसरे के साथ जुड़ना जरूरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो जुड़ने वाला रिएक्शन है ना और प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, विच इज शोन ओवर हियर। सो मैग्नीशियम आपका रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। कैसे? क्योंकि जिस जिस रिएक्शन में आपका काइनेज वगैरह लगेगा, जैसे हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन, एक रिएक्शन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, इसमें आपके साथ साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज भी प्रेजेंट होते हैं विच यूज टू हेल्प इन दीज रेस्पिरेटरी रिएक्शंस। ओके, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। एंड इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, क्योंकि आपका रेप्लिकेशन के दौरान या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कुछ एंजाइम्स हैं जो कि मैग्नीशियम ओरिएंटेड रहते हैं, जो मैग्नीशियम के प्रेजेंस होने पे ही काम करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर नाउ, सल्फर सल्फेट आयंस के फॉर्म में आपका एब्जॉर्ब होता है। दो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज योर मिथायोनिन एंड सेकेंड वन इज योर सिस्टीन। तो सिस्टीन और मिथायोनिन आर द टू इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड विच आर कॉल्ड एज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ओके, सिस्टीन और मिथायोनिन। और सिस्टाइन कहीं पर लिखा मिल जाए तो वो सिस्टीन के दो कंपोनेंट्स को जोड़कर बनता है। ओके, तो सिस्टीन जब दो जुड़ जाते हैं साथ में विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज, अब इनमें सल्फर है तो डाइसल्फाइड लिंकेज बनेगी ना। सो डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाते हैं तो इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को आप लोग कहते हो सिस्टाइन, विच इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड। लेकिन ये आपके 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में नहीं गिना जाता, सो इसको आप यूजुअली कंसिडर नहीं करते। सो
आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड देयर आर ओनली 2 अमीनो एसिड जो कि सल्फर कंटेन करते हैं, सिस्टीन और मिथायोनिन। ये आपके काफी सारे कोएंजाइम्स में या विटामिन में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपका थियामिन। सो थायमिन आपका एक नाइट्रोजनस बेस है, बट थियामिन इज अ विटामिन। देन आपका बायोटिन, आपका कोएंजाइम ए जो कि पेंटोथेनिक एसिड से बनता है, एंड योर फेराडॉक्सिन, इन सब में सल्फर प्रेजेंट होता है। आयरन, सो प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस Fe3 पॉजिटिव। सो यहां पर Fe2 पॉजिटिव नहीं लिखना है दोस्तों, ये गलती अक्सर हो जाती है। ये फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ना कि फेरस आयन के फॉर्म में, ये याद रखना है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सो इसकी क्वांटिटी बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चाहिए रहती है, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। सो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आयरन सेंटर्स और कॉपर सेंटर्स मिलेंगे। मैंने शायद कहीं पर लिख भी रखा था इनिशियली ये वाला, कि जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तो आयरन और कॉपर सेंटर्स आपको मिलेंगे। सो आयरन की बात अभी स्टार्ट हो गई ना यहां पर। सो ये जो है आपको साइटोक्रोम्स और जो आपके फेराडॉक्सिन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहां पर देखने को मिलेंगे। दे कैन बी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, इनका रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन हो जाता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द कैटलेज एंजाइम, यानी कैटलेज एंजाइम जो रहता है, जो बेसिकली पेरोक्साइड पे एक्ट करता है, उस एंजाइम को ये एक्टिवेट कर सकता है, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर एट दैट पोजीशन। और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में ये काम करता है, यानी मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइमेटिक मशीनरी चाहिए उसमें आपका आयरन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। मैंगनीज, अब मैंगनीज हमने काफी बार पीछे नाम पढ़ लिया है। मैंगनीज आपका इस फॉर्म में, मैंगनीज आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जितने भी आपके रिएक्शंस हैं उनमें आपका ये इन्वॉल्व होगा। रेस्पिरेशन, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बता दिया था इनिशियली कि रेस्पिरेशन में आपको मैग्नीशियम और मैंगनीज काफी जगह देखने को मिलेगा। एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी आपको मोलिब्डेनम के साथ मैंगनीज काफी बार देखने को मिलेगा इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स टू वर्क प्रॉपर्ली। सो ये काफी सारे एंजाइम्स के काम करने का जो है जरिया बनता है। इट इज बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और ये जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है इसमें क्लोरीन भी आपका काम करता है। सो फोटोसिंथेसिस में हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में। सो जो वाटर स्प्लिट हो रहा था, जहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे थे इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आपका मैंगनीज भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था, एज वेल एज आपका क्लोरीन भी। सो अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो उसमें अभी पढ़ लेते हैं। क्लोरीन जो है, यस, इसमें भी आपका वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में ये काम कर रहा था, जिस वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी। ओके, देन जिंक। जिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। सो जिंक जो है इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स सच एज कार्बोक्सिलेज, ओके, और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, जो आपका मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो आपका प्लांट हार्मोन है, उस पीजीआर की सिंथेसिस में, ऑक्सिन की सिंथेसिस में आपका जिंक रिक्वायर्ड होता है। देन कॉपर, आयरन और कॉपर सेंटर्स कहां प्रेजेंट थे? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। सो ये कॉपर आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, एंड ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जस्ट लाइक आयरन, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में काम आएगा, क्योंकि आयरन जैसे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो सकता था, ये भी आपका Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है। देन देयर इज योर बोरॉन। बोरॉन आपका BO3 नेगेटिव के फॉर्म में और B4O7 2 नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। दीज आर समथिंग डिफरेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों के नॉर्मल आयनिक फॉर्म्स आपको यूजुअली याद रहते हैं, जैसे Mg का Mg2 पॉजिटिव, Mn का Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि केमिस्ट्री से ये सारी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं। बट बोरॉन की जो मेन आयनिक फॉर्म है ये समटाइम्स आपको याद नहीं रहती, तो ये आप याद कर लीजिएगा, BO3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव। एंड सेम आपका मोलिब्डेनम में आएगा, दैट इज MoO2। सो मैं इसको पर्सनली मोटू बोलता हूं, क्योंकि ये है मो और ये है O2। सो ये तो आपको मोटू से याद हो जाएगा, बट ये आपको BO3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव याद करना पड़ेगा। ओके, सो बोरॉन जो है ये आपका कैल्शियम का भाई है। ओके, सो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ये भी आपका बोरॉन की वजह से ही होता है। यानी अगर आपको
कैल्शियम अपटेक करना है तो उसके लिए आपको बोरॉन की रिक्वायरमेंट होगी। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, क्योंकि कैल्शियम मेम्ब्रेन में काम कर रहा था, सेल वॉल की फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, मिडल लैमेला की फॉर्मेशन, सब में कैल्शियम इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं बोरॉन अगर कैल्शियम को अफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मेम्ब्रेन फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करेगा। पॉलन जर्मिनेशन इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। पॉलन जर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बोरॉन, और ये आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये आपका जेन्युइनली पूछा जाता है। सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी कि सेल आपके लंबे हो जाएंगे ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएट होंगे, यानी सेल विल बी गेटिंग अ गुड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मुझे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सेल चाहिए, आई विल बी असाइनिंग xylem that function. If I need some sort of cells for food transport, I'll be assigning phloem that function. If I need some cells for the rigidity, I'll give that function to the collenchyma in young parts. So मैं अपने हिसाब से सेल्स को फंक्शन दे सकता हूं और वो डिफरेंशिएट होकर वही काम करने लग जाएंगे। उसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज बोरॉन, जो कि उन सिग्नल्स के साथ साथ आपको इंड्यूस करता है टू गेट डिफरेंशिएटेड। एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी कि जहां से बना है वहां पे स्टोरेज लेवल तक पहुंचाने में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना है, इट इज गोइंग टू बी वे कॉम्प्लेक्स। ये आपका एमएससी में आता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म। सो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है, और याद भी ना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ट्रिक बना दूंगा। सो मोलिब्डेनम मोटू के फॉर्म में आपका एब्जॉर्ब होगा। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम। मोलिब्डेनम कहाँ देखने को मिलता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले एंजाइम्स में। सो नाइट्रोजिनेज में देखने को मिलता है, और नाइट्रेट रिडक्टेज में, जो दोनों के दोनों आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम्स हैं। क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, और सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन क्या कर रहे थे? आयनिक कैटायनिक बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। सो अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और आयनिक कैटायनिक आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती है, और वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में ये आपका मैंगनीज के साथ साथ काम करती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल आयंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस एलिमेंट से क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। समझ लो, अगर मैंने कोई एलिमेंट हटा दिया है किसी प्लांट से, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड। अगर आपकी सप्लाई किसी भी एलिमेंट की लिमिटेड हो गई है, यानी उसकी कंसंट्रेशन जितनी जरूरी है उससे कम है, तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी प्लांट की। और वो कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट मींस दैट द कंसंट्रेशन बिलो विच देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ, इट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो एलिमेंट विल बी सेड डेफिशिएंट अगर उसकी कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है। सिंस द एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन प्लांट्स, हर एलिमेंट के अलग अलग रोल्स होते हैं यार। जैसे नाइट्रोजन है, आपका प्रोटीन भी बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेसिस भी बनाएगा। सो काफी रोल्स हैं उसके। ओके, सो इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस विल बी देयर। सो हर एलिमेंट को हटाने पर, अगर फैक्चुअली आप लोग देखें तो एसेंशियल एलिमेंट्स को जब आप हटाएंगे, आपको प्लांट में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, काफी सारे चेंजेस। उनकी शक्ल देख के पता लग जाएगा कि प्लांट पीला पड़ गया है, या उसकी वेन्स जो है वो डिसरप्ट हो गई है, या प्लांट की लीफ कर्ल हो गई है, या फिर प्लांट की ग्रोथ जो है रुक गई है, सेल डिवीजन उसमें रुक गया है। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर सिम्टम्स कि प्लांट में कोई ना कोई गड़बड़ है। सो ऑल दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव कि भाई कोई ना कोई डेफिशिएंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, एंड इनको आप लोग डेफिशिएंसी सिम्टम बोलते हो, जो देख के बता सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है, समझ लीजिए न्यूमोनिया हुआ है, सो देयर आर सम सिम्टम्स जिससे आपको न्यूमोनिया का पता लग जाएगा। चिल्स होंगे आपकी बॉडी में, देन सडन फीवर आ जाएगा, फिर फीवर ठीक हो जाएगा, देन अगेन चिल्स आएंगी। देयर आर सम थिंग्स दैट आर सिम्टम्स टू फाइंड एनी डिजीज। सो हियर यू आर गोइंग टू फाउंड सम सिम्टम्स एज वेल। सो द सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ओके, और जैसे ही आप वो एलिमेंट प्रोवाइड कर दोगे, सिम्टम्स आपके चले जाएंगे। समझ लो, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आपको चाहिए थी 15 यूनिट, में यहां पर नहीं लगा रहा हूं बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आपका प्लांट एकदम तना हुआ खड़ा हुआ था, ओके, क्योंकि 15 मैंने इसे दे दी। आप समझ लो मैंने इसे सिर्फ 7 ही दी, सो ये जो है सिम्टम्स दिखाने लग गया, लीफ वगैरह इसकी कर्ल हो गई और येलो हो गया पूरा का पूरा प्लांट। अगर मैं इसे दोबारा +8 करके दे दूं,
यानी दोबारा मैं इसे रेगुलर क्वांटिटी प्रोवाइड करने दे दूं, इट विल अगेन बी हेल्दी। ओके, बट इफ दिस डेप्राइवेशन कंटिन्यूज, इफ मैं कंटिन्यूअसली आपका उस एलिमेंट को निकालता रहूं या फिर एलिमेंट ना ऐड करूं, तो प्लांट की जो है डेथ हो जाएगी। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी, कि किस प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम है, ये मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल समझ लो एक प्लांट का पार्ट है और ये प्लांट होने वाला है डेड, यानी कि ये प्लांट है आपका ओल्ड प्लांट पार्ट, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट है ये है मोबाइल। तो ये क्या करेगा, जब कोई आदमी मरने वाला रहता है तो क्या करता है, अपनी जायदाद यंग वंस को देके जाता है। सो ये जो है आपका डेड प्लांट पार्ट, ये अपने एलिमेंट्स को मोबाइल कर देगा। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके यंग पार्ट्स में चले जाएंगे। सो यंग पार्ट्स में ये एलिमेंट आ गया तो यंग प्लांट अपने आराम से ग्रो करता रहेगा, लेकिन आपका जो ओल्ड पार्ट है ये डेड हो जाएगा। सो डेफिशिएंसी सिम्टम पहले किस में दिखेगा, ऑब्वियसली ओल्ड में दिखेगा ना, क्योंकि ओल्ड से मिनरल निकल गए। लेकिन लेट्स से दैट देयर इज अ ओल्ड पार्ट एंड द इंपॉर्टेंट मिनरल इज नॉन मोबाइल, इट इज नॉट गोइंग टू बी मोबाइल। सो व्हाट विल हैपन, ये अगर नॉन मोबाइल है तो इसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यंग प्लांट पार्ट के अंदर ये नहीं जा पा रहा है। सो इसमें आपका सेनेसेंट में जो है आपका सिम्टम ना दिखकर दूसरे प्लांट पार्ट्स में सिम्टम दिखने लग जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल एक्टिवली मोबिलाइज्ड जो प्लांट के एलिमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, जिनमें ज्यादा जरूरत है। सो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में आएंगे, ओल्ड पार्ट्स में आएंगे ना। सो फर्स्टली ओल्ड टिश्यूज में आपके डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। फॉर एग्जांपल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन, के एंड एमजी। सो आपका ये जो है आपका ओके पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, ये आपके मोबाइल एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। ओके, सो मोबाइल में सेनेसेंट लीव्स में आपके जल्दी सिम्टम आएंगे बिकॉज ये यंग तक पहुंचा दिए जाएंगे, तो यंग में कोई सिम्टम नहीं होगा। सो इन ओल्डर लीव्स द बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन। इस लीफ में कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो हैं जिसमें नाइट्रोजन, आपका पोटेशियम या मैग्नीज प्रेजेंट थे, वो तोड़ दिए जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स, और उसमें से एलिमेंट निकालकर दे दिए जाएंगे। यानी तिजोरी तोड़कर खजाना दे दिया गया है टू द यंगर लीव्स और द यंगर वंस, और उसके बाद डेड पार्ट जो है आपका शेड ऑफ हो जाएगा। डेफिशिएंसी सिम्टम आपका पहले आएगा यंग टिश्यूज में, कब, जब आपका एलिमेंट इमोबाइल होगा एंड इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आपका सल्फर जो है या आपका कैल्शियम जो है, मैंने आपको बताया था कैल्शियम अगर एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में, कहीं मूव नहीं करेगा। सो कैल्शियम इज नॉन मोबाइल। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। आपका सल्फर जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसे है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द प्रोटीन्स। ओके, इट इज फॉर्मिंग द सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स। सो वहां पर क्या है आपका, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ गया है, तो ये इजीली रिलीज नहीं होते। सो दे विल नॉट बी गिवन टू द यंगर लीफ। सो यंगर में पहले आपके डेफिशिएंसी आ जाएगी इन एलिमेंट्स की, ओल्डर में नहीं आएगी। ओके, सो यहां पर ये चीजें आपको पता लग जाएंगी कि कौन कौन से आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं या मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से नहीं। सो आपका एन, के और एम जी आपके यूजुअली मोबाइल में गिने जाते हैं, और आपका कैल्शियम और सल्फर जो है ये आपके नॉन मोबाइल में गिने जाते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम अगर आप देखोगे तो काफी चीजें हो सकती है। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब क्लोरो वर्ड यहां पर आ रहा है ना, तो क्लोरोफिल आपका कम हो जाएगा। क्लोरोफिल आपका प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, अगर वो कम होगा तो आपका प्लांट पार्ट येलो हो जाएगा। दिस इज अबाउट द क्लोरोसिस। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू मरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ हो जाना, तो टिश्यू आपका यहां पर डेड हो जाएगा। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ ही रुक जाएगी। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, लीफ जो है पूरे मैच्योर होने से पहले ही गिर जाएंगे, यानी वो उनकी जो स्टेम को लीफ रखने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, सो लीफ आपके पहले फॉल हो जाते हैं। ओके, और बड भी इसी तरीके से, तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। अगर बड समझ लो आपका फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही गिर गया, तो क्या फायदा हुआ, रिप्रोडक्शन थोड़ी कर पाएगा वो। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ही जब नहीं होगा तो ग्रोथ का कोई चांस पैदा ही नहीं हो सकता। सो क्लोरोसिस का क्या मतलब है, इट मींस दैट द लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ आपकी येलो हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एन, के, एम, जी, एस, एफ, ई, एम, एन, जेड, एन, एम, ओ। इसके लिए मैं आपकी ट्रिक बना दूंगा, डोंट वरी। सो इसको सिर्फ एक बार देख लो, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का, वो समझो, ठीक है। नेक्रोसिस जो है आपका वो इन एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी से होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस हुआ, अभी पढ़ा है हमने।
मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस भी हुआ। कंसेप्ट क्या है, एक एलिमेंट से बहुत डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी मैग्नीशियम अगर कम है तो आपका टिश्यू डेथ भी हो रही है, येलोइंग ऑफ लीफ भी हो रही है। समझ रहे हो? अब आपका यहां पर के देखो, के इज प्रेजेंट ओवर हियर एज वेल, यानी आपका जो पोटेशियम है उससे टिश्यू डेथ भी हो रही है, येलोइंग ऑफ लीव्स भी हो रही है, और ये जो के है ये यहां पर भी प्रेजेंट है, यानी इससे आपका सेल डिवीजन भी इनहिबिट हो रहा है। यानी एक ही एलिमेंट इतने सिम्टम्स शो कर सकता है कि आप बता नहीं सकते कि क्या क्या उसके एक्चुअल सिम्टम्स हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट जो है काफी सारी सिम्टम्स यहां पर दे रहा है। आप लोग देख रहे हो जो के है, जो आपका पोटेशियम है, ये सेल डिवीजन को भी रोक लेगा, ये आपका टिश्यू डेथ भी करवा देगा, ये आपका येलोइंग ऑफ लीफ भी करा देगा। सो विल नॉट बी एबल टू फाउंड कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि समझ लो येलोइंग ऑफ लीफ हुई और आपने बोला कि भाई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से हो रही है, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है सल्फर की डेफिशिएंसी से हो रही हो, आयरन की डेफिशिएंसी से हो रही हो, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से हो रहे हो। सो लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉजिंग द सेम डेफिशिएंसी एंड अ सेम एलिमेंट इज कॉजिंग वैरायटी ऑफ डेफिशिएंसीज। ये चीज देखने लायक है। जैसे अब आप देखोगे NS और MO ये आपका फ्लावरिंग को डिले कर देता है अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है तो यहां पर देखो सल्फर जो है आपका क्या कर रहा है, सेल डिवीजन भी इनहिबिट कर रहा है। सल्फर आपका यहां पर भी प्रेजेंट है जो कि फ्लावरिंग को डिले कर रहा है। सल्फर आपका यहां पर भी प्रेजेंट है जो क्लोरोसिस करवा रहा है। यानी एक एलिमेंट की कमी से काफी चीजें हो सकती है, ये हम यहां पर जस्टिफाई करना चाह रहे हैं छोटे मोटे बात में। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम द अबव द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम दिखा रहा है एंड सेम सिम्टम जो है ये कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी आपका हो सकता है क्लोरोसिस, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, सल्फर की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। सो वन हैज टू स्टडी ऑल द सिम्टम्स एंड ऑल द एलिमेंट्स, और उनको कंपेयर करके जब आप चार्ट बनाओगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि भाई कौन से एलिमेंट का लोचा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स जो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, अगर आपने उन्हें औकात से ज्यादा खा लिया तो आपकी बॉडी में धूम मचा देंगे जाके। यानी कि टॉक्सिसिटी मतलब किसी चीज का टॉक्सिक हो जाना। सो एट अ पर्टिकुलर लेवल ईच एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर बॉडी, बट व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सीड इट्स लिमिट, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ऊपर जब वो चला जाएगा तो उस टाइम पे वो जहर बन जाएगा। इट इज गोइंग टू बी रियली रियली टॉक्सिक। सो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से भी कम आपको चाहिए था ये, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा दे दोगे, एक मॉडरेट इंक्रीज भी अगर आप करोगे तो ये जहर बन जाएगा जो कि टॉक्सिसिटी करने लग जाएगा। सो एक नैरो रेंज के अंदर ये डिजायर्ड होते हैं। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज बाय 10%, यानी एक ऐसा मिनरल आयन, एक ऐसा मिनरल जिसकी टॉक्सिसिटी, जिसके ज्यादा होने की वजह से आपका ड्राई वेट जो है वो 10% घट गया है। अब आप ये बोल रहे हो भाई जहर खा लिया तो मोटे थोड़ी हो जाओगे, जाहिर सी बात है मरने की हालत आ जाएगी, सिकुड़ जाओगे, हड्डी बन जाओगे। तो यहां पर क्या हुआ है, 10% से रिडक्शन हो गया है आपका ड्राई वेट के अंदर। एक ऐसा एलिमेंट जिसको आपने बहुत ज्यादा खाया और उसको खाने से आपकी बॉडी का वजन जो है अराउंड 10% कम हो गया। अगर पहले 100 kg के थे आप तो आप 90 kg के बच गए हो। ये जो आपका लॉस हुआ है बॉडी मास का, ये उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है, यानी अब आप दुबले पतले होने लगे हो। ओके, सो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बहुत वेरी करती है अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे आयरन है, मैंने आपको बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन इज नेसेसरी इन मोस्ट अमाउंट, सो उसका आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दोगे चल जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत कोई अगर छोटा एलिमेंट जो बहुत कम चाहिए उसके बहुत कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो भाई आपके प्लांट का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ओके, क्योंकि टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट प्लांट, क्योंकि काफी सारे प्लांट में जैसे यूकेलिप्टस के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन झेल जाए वो किसी चीज की, हो सकता है आपका मस्टर्ड ना झेल पाए, हो सकता है आपका वीट ना झेल पाए, हो सकता है आपका पीपल झेल जाए, हो सकता है बनियान ट्री झेल जाए, ओके, हो सकता है गिंगो बायलोबा झेल जाए, हो सकता है तुलसी माता ना झेल पाए। समझ रहे हो, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली बहुत आपको देखना पड़ता है कि कौन सी, अगर आप उनको हाइड्रोपोनिक्स में उगाओगे देन यू बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना एलिमेंट इसको क्वांटिटी देनी चाहिए हमें, अगर उससे ज्यादा दी तो प्लांट की बैंड बच जाएगी। सो हियर व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि टॉक्सिसिटी
को आप उतनी आसानी से उसके सिम्टम्स को पता भी नहीं लगा पाओगे, आपको उतने विजिबल सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्लांट मरने लग जाएगा। सो मैनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे कि अगर आपने प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी देखी, यानी अगर आपका Mn है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये बाकी एलिमेंट्स के साथ छेड़खानी करेगा। इसकी मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स, मतलब ब्राउन स्पॉट्स आपके यहां पर आ जाएंगे और उनके साइड में येलो वेन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। ओके, यानी कि अब जो है, अब आपका आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन होने लगा है। व्हेन द मैग्नीज इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल क्वांटिटी, तो आयरन और मैग्नीशियम भी आपके नॉर्मल क्वांटिटी में सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अब मैग्नीज हो गया है ज्यादा, तो आप समझ लो आपके 10 एलिमेंट भी मैग्नीज के ज्यादा हैं, 10 मॉलिक्यूल्स भी अगर आपके ज्यादा हैं, देन दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विद द आयरन एंड मैग्नीशियम अपटेक। अब इनके अपटेक के साथ ये जो है छेड़खानी करेगा, एंड मैग्नीशियम के साथ तो ये और छेड़खानी करता है फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एंजाइम्स होते हैं लगभग सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीज जो है आपका फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में मिलता है, मैग्नीशियम भी आपका वहीं मिलता है। सो ये जो है एक दूसरे की साइट्स को भी चोरी कर लेते हैं। सो मैग्नीज जो है इट ऑल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। जैसे ही रूट ने कैल्शियम निकाला सॉइल से, उसको शूट अपेक्स तक पहुंचाने से पहले ही इसने इनहिबिट कर दिया, यानी उसे जिस जगह जाना था वहां पे जाने ही नहीं दिया। सो देयरफॉर अगर मैंगनीज एक्सेस हो गया है तो आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इसके अपटेक को रोक दिया, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इसके अपटेक को रोक दिया और इसके एंजाइमेटिक साइट पर हमला कर दिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि नीचे से ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। सो समटाइम्स अ सिंगल एलिमेंटल डेफिशिएंसी कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल Fe, Mg एंड Ca इन दिस पर्टिकुलर केस। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो यहां पर जो आप देख रहे हो सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी, वो एक्चुअल में डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैग्नीज इन सबको भी एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देयर आर टू क्रिटिकल रीजन्स। एक जो रीजन है उसको आप थोड़ा बाहर का रीजन बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट, एंड जो अंदर का रीजन है इनर स्पेस, उसको आप कहते हो सिम्प्लास्ट। सो लेट्स से दिस इज द एपोप्लास्ट एंड दिस इज द सिम्प्लास्ट। सो यहां पर अगर कोई एलिमेंट आपका प्रेजेंट है तो ये कैसे एब्जॉर्ब होगा? ये बाहर के स्पेस में यानी आउटर स्पेस में आता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट ये अंदर वाली चीज में ट्रांसपोर्ट होगा, ये अंदर इनर स्पेस में ट्रांसपोर्ट होगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस इज much of the studies mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell, tissue और organ. So अलग अलग cells, tissues और organ में absorption का mechanism देखने की आज तक कोशिश की जा चुकी है, और इस studies ने reveal किया है कि process of absorption can be demarcated into two main phases. दो phases में ये process होता है। पहले phase में क्या होगा? पहला phase आपका fast होगा, it is initial phase and it is fast phase, जहां पर आयंस आपके फ्री स्पेस या आउटर स्पेस में चले जाते हैं। सो दिस इज द आउटर स्पेस और द फ्री स्पेस, इसके अंदर आयन आराम से आ गए हैं पैसिवली, यानी बिना किसी एनर्जी के खर्चे के। सो इसे आपने एपोप्लास्ट बोला, और इसके अंदर जो मूवमेंट है वो पैसिव हुई, यानी अभी तक बिना किसी एनर्जी के खर्चे के, बिना किसी भाड़े के, जो सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं वो अंदर घुस गए। सेकेंड फेज आपका कंपैरेटिवली स्लो होता है। सो पैसिव है, बिना एनर्जी के। जब आपको कोई बोलोगे हाँ भाई अमेरिका चलना है और टिकट लग नहीं रही है और सारे बंदे, कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं, सारे बंदे घुस जाओ, भाई एक एक बंदा चप्पल हाथ में लेके चढ़ जाएगा। तो सीधी बात है, पैसिव के अंदर आपके सारे फास्ट चढ़ गए, लेकिन अंदर जाके आपके एयर होस्टेस ने और बाकी सारे लोगों ने जब पासपोर्ट चेक करना स्टार्ट किया तो कुछ ही लोग जो है आपके स्लो अंदर घुसे बाय चेकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर आपका अब चेक लग चुका है, एंड दैट चेक इज एटीपी, कि एटीपी दो और अंदर जाओ। सो यहां पर जो है आपका थोड़ा स्लो प्रोसेस हुआ, तो इनर स्पेस जो था दैट इज कॉल्ड एज योर सिम्प्लास्ट, ये यहां पर आपका स्लोली चीजों को और अंदर भेजता है। सो पैसिव मूवमेंट्स ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच आर द सिलेक्टिव पोर्स। यानी आपने मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर अभी पढ़ा होगा
मेरी वन शॉट में, तो आपने देखा होगा कि ये मेम्ब्रेन की आउटर लीफ है, ये मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट है, इसके बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड आने देते हैं। सो यहां पर वो आपके प्रोटीन्स लगे हुए हैं या फिर चैनल्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू आपके ये पर्टिकुलरली अंदर आ सकते हैं। सो एंट्री और एग्जिट आपकी यहां पर हो जाती है। सो यहां पर आपको सिंप्लास्ट जो है, ये जो सॉरी हम लोग किस लाइन पे थे, ऑन द अदर हैंड एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द आयंस टू एंड फ्रॉम द सिंप्लास्ट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। यानी यहां से अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको एटीपी देनी पड़ेगी। यहां पर गेट है और यहां पर चेक पास है। तो अगर आप चीजों को अंदर भेजते हो, अंदर की तरफ घुसाते हो, तो मूवमेंट ऑफ आयन को आप लोग बोलते हो फ्लक्स। अगर फ्लक्स आपका अंदर की तरफ हो रहा है तो इट इज इनफ्लक्स, अगर बाहर की साइड अगर धक्का मार के निकाल रहे हो आयंस को, सो इट इज ई फ्लक्स। सो मूवमेंट ऑफ आयंस इज फ्लक्स। अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर, यहां पर पहुंचा रहे हो अगर मिनरल को, सो इनफ्लक्स हो जाएगा, और आउटवर्ड मूवमेंट अगर कर रहे हो तो ई फ्लक्स हो जाएगा। सो मूवमेंट कैसे हुई आपकी, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ एलिमेंट्स का, आउटर स्पेस है और इनर स्पेस है, आउटर स्पेस तक आए अपने फ्री में बिना किसी खर्चे के और फास्ट, और अंदर जो आपके सिंप्लास्ट में गए वो गए स्लोली खर्चे के साथ और थोड़ा थोड़ा आराम आराम से, ओके, वेरी स्लोली। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स की हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो सॉल्यूट है ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं, जो मिनरल्स आपने एब्जॉर्ब किए हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में, हम लोग जानते हैं वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम। लेकिन अब प्रूव कैसे करें, वी नीड टू प्रूव दैट द जाइलम यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस थिंग। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, समझ लो दिस इज द प्लांट। ये जो प्लांट है, ये जो इसका लीफ है, इससे वाटर बाहर की साइड निकल जाएगा, इट मींस दैट इट इज गोइंग टू ट्रांसपायर। अगर वाटर यहां से लॉस हो गया है, अगर वाटर यहां से लॉस हो गया है, व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम लीफ। तो ये क्या करेगा, नीचे से जो वाटर आ रहा है आपका रूट से, उसको एक स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ओके, उसकी एक धार बना देगा, सीधी धार, जिसे आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन पुल। यानी ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन से एक फोर्स आई जो कि ग्राउंड वाटर को ऊपर खींच रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि आपके वाटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर लेकर आती है, असेंडिंग डायरेक्शन में लेकर आती है। जब आपके जाइलम सैप का एनालिसिस किया गया, जब देखा गया कि जाइलम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर हमने पाया वाटर के साथ मिनरल्स भी थे। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ कि वाटर में मिनरल्स हैं, इसका मतलब मिनरल और वाटर साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक लगाई। समझ लो मैग्नीशियम अगर आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस प्लांट के आसपास की सॉइल में रेडियो एक्टिव मैग्नीशियम डाला, या रेडियो एक्टिव आपका हैवी नाइट्रोजन डाला, या फिर आपका रेडियो एक्टिव कार्बन डाला, कुछ भी डाला यहां पर, और चेक करने लग गए हम लोग कि जाइलम में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है या नहीं। तो हमने जब जाइलम को चेक किया तो हमें पता लगा कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है। तो हमारी हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पर हमें प्रूफ मिल गया कि जाइलम ही इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ही ये सारे काम करता है। सॉइल एज द रिजर्वायर ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। वी नो वेरी वेल कि आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, सिर्फ ये आपके वाटर और CO2 के बेसिस पर आपको मिल रहे थे। अदर देन देम ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आपके सॉइल से आ रहे थे। सो मेजॉरिटी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स कहां से आ रहे थे, ये आपके सॉइल से आ रहे थे। और सॉइल में ये कहां से आते हैं, सॉइल में ये आते हैं फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मीन्स द ब्रेकेज। ये आपका अगर रॉक है, सो ये रॉक टाइम के साथ रेग्रेस होता रहता है, ये रॉक आपका टाइम के साथ क्या रहता है, छोटा होता रहता है, एंड इट यूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द सॉइल। सो इसके अंदर जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके सॉइल के कणों में छुप जाते हैं, और इन सॉइल से वो मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द प्लांट। सो दीज प्रोसेसेस एनरिच द सॉइल इन डिसॉल्व्ड आयंस एंड इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वेदरिंग ऑफ रॉक से आपके डिसॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनरिच हो चुके हैं सॉइल में। So, since they are derived from rock minerals, क्योंकि ये रॉक मिनरल से डेराइव्ड किए गए हैं, their role in plant nutrition is referred as mineral nutrition। क्योंकि ये मिनरल एलिमेंट्स हैं, सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन रखा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके रॉक से बनी हुई सॉइल से एब्जॉर्ब की जाती हैं। सो हर चीज के पीछे लॉजिक है बायोलॉजी में। सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। काफी सारे मिनरल्स हैं इसमें, सिलिका वगैरह है जो कि मिट्टी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है, क्ले वगैरह इसमें प्रेजेंट हो सकती है। सो सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज द मिनरल
बट इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमारी भाई टेंडेंसी नहीं है, ना कोई यूकैरियोट कर सकता, कोई भी यूकैरियोट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें भगवान ने ये वरदान दिया है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ये तामझाम प्रेजेंट है और इसको ब्रेक कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। ओके, अदर माइक्रोब्स भी यहां पर प्रेजेंट रह सकते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। सॉइल में आपका वाटर भी होल्ड करके पाया जाता है, एयर भी यहां पर प्रेजेंट होती है इन एयर कैविटीज और द स्पेसेस जो कि रूट तक पहुंचाई जा सकती है। एंड सॉइल आपका एक मैट्रिक्स के तरीके से भी काम करता है जो प्लांट को खड़े रहने में सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो सॉल्ट इज जस्ट नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द मिनरल्स, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो जरूरी रहती है। सो सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, देयर इज ऑफन अ नीड ऑफ सप्लाइंग देम थ्रू द फर्टिलाइजर। काफी सारे अगर यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं तो आप फर्टिलाइजर के थ्रू सॉइल के अंदर डाल दो वो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपने सॉइल में डाल दिए फर्टिलाइजर के फॉर्म में तो वहां से तो प्लांट आपका खुद ब खुद उठा लेगा, वो बहुत समझदार है। सो NPKs जो है आपके यूज किए जाते हैं इन फर्टिलाइजर्स मोस्टली, और कॉपर, जिंक, FeMn और काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी भी डेफिशिएंसी है उस हिसाब से आपको स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर भी मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल दैट यू आर हैविंग, और उस हिसाब से आप लोग उन्हें ऐड करके खत्म कर सकते हो अपना काम। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। सो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? आपके एटमॉस्फेयर के जो अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो भी नाइट्रोजन है। आपका समझ लीजिए कोई प्लांट है वो मर गया, सो इसके अंदर जो प्रोटीन थे और न्यूक्लिक एसिड थे उससे भी नाइट्रोजन आपका डिग्रेड होकर आपको मिलेगा। कोई इंसेक्ट था समझ लीजिए वो मर गया तो इसकी भी नाइट्रोजन आपके सॉइल में चली गई है। ओके, ये भी कोई किसी ना किसी को डिग्रेड करनी पड़ेगी, इसके बॉडी के जो कंपाउंड्स थे वो भी। समझ लीजिए कोई बड़ा एनिमल आपका मर गया, सो उसके अंदर जो प्रेजेंट था आपका नाइट्रोजन वो भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, क्या बनाया है पता नहीं है भाई मैंने, लेकिन इसको एनिमल समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कैसे साइक्लेट होती हैं, वो कैसे सर्कुलेट होती रहती हैं, कैसे एटमॉस्फेयर से प्लांट में आई, प्लांट से फिर कहाँ गई, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि आपको CO2 और H2O से मिल जाएगा, नाइट्रोजन आपका मोस्ट प्रिवेलेंट एनिमल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये चारों आपका बहुत ज्यादा मास, आपका 99% से भी ज्यादा मास जो है इनसे ही बनता है। ओके, इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट। नाइट्रोजन जो है ये आपका अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट होता है एज इन केस ऑफ अमीनो ग्रुप, और अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है तो प्रोटीन भी बनाएगा पॉलीमराइज होके। हार्मोन्स में ये अमीन हार्मोन्स बना सकता है, हमने देखा था कि साइटोकाइनिन्स में भी ये प्रेजेंट है। ओके, आपके इंडोल जो हार्मोन्स है उनमें भी ये प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में भी ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के चारों ओर जो है आपके 4 नाइट्रोजन अटैच होते हैं। दिस इज द सेंट्रल मैग्नीशियम, इसके चारों ओर सबसे पहले जो अटैचमेंट होती है वो इसकी नाइट्रोजन के साथ ही होती है, सो उसके अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। एंड मैनी अदर विटामिन सच एज विटामिन B6 जो हमने देखा था उसमें भी ये पाया जाता है। सो प्लांट कंपीट विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन। प्लांट और माइक्रोब में टक्कर होती रहती है कि सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन कौन उठाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो प्लांट यूटिलाइज कर नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि अगर ले भी लेगा, गलती से एब्जॉर्ब कर भी लिया तो करेगा क्या, उसका ट्रिपल बॉन्ड तो तोड़ नहीं पाएगा। सो ऑब्वियसली जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से मिल गया, उसके बीच में चलता है कंपटीशन कि भाई मैं लूंगा, माइक्रोब कहता है मैं लूंगा। सो दस नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ये ग्रोथ को लिमिट करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, यानी कि सबसे बुरी बात है ये ग्रोथ के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट रीजन ऑफ स्टंटेशन इन ग्रोथ। ग्रोथ जो स्टंट हो जाती है उसमें नाइट्रोजन का हाथ रहता है, क्योंकि एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। यानी कि चाहे अगर आप कोई क्रॉप उगा रहे हो उसमें भी नाइट्रोजन के डेफिशिएंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सो इसीलिए फील्ड को काफी बार छोड़ा जाता है। आपने 3-4 फसलें अगर उगा ली तो छोड़ दिया जाता है उसको खाली, जिससे कि उसके अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके और आपकी सॉइल बहुत बेहतर हो सके आपके फर्दर चीजों को उगाने के लिए। और आपके जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं उनमें भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ऐड किया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। और नेचुरली जो प्लांट प्रेजेंट है उनमें भी मारामारी नाइट्रोजन की रहती है। सो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म इन एनवायरमेंट, सो इसको यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, जिससे कि वो प्लांट बॉडी में यूज किया जा सके और अमीनो एसिड बनाए जा सके।
क्योंकि अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया इज दिस, इससे क्या होगा आपका अमीन ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा किसी अमीनो एसिड में, और फिर अमीनो एसिड बनने के बाद प्रोटीन्स बनते जाएंगे एंड सो ऑन। सो इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हो। सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। सो नाइट्रोजन इनटू अमोनिया को क्या बोला आपने, इसको आपने बोला फिक्सेशन। अब बची हुई टर्म्स भी आपको दिखाऊंगा मैं। नेचर में जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली का कड़कना, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ये काफी बार नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, यानी NO, NO2, N2O, इन सब के अंदर। काफी बार इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होती है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो कंबशंस होती हैं, या जो आपकी फॉरेस्ट में लगी हुई आग रहती है, या जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट रहते हैं, या आपके पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इट कैन बी फिक्स्ड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, ये इसको अमोनिया में भी कन्वर्ट कर सकता है, एंड इंडस्ट्रियल वाला इसको ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल जो आपका होता है नेचुरल वे में, ये जो आपके बेसिकली थंडरिंग वगैरह होती है, बिजली का कड़कना, उससे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। So decomposition of organic nitrogen of dead plant and animals into ammonia is called as ammonification। यानी डेड प्लांट और एनिमल्स में, ये प्लांट का बायोमास है या फिर समझ लीजिए एनिमल का बायोमास है, ये वाला, इन दोनों से ये जो डेड मास है, इससे अगर आपका अमोनिया बना है तो इसको आप बोलोगे अमोनिफिकेशन। यानी डेड वाले से अगर अमोनिया बना तो अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना, नाम में ही सब कुछ है, अमोनी वर्ड यहां पर प्रेजेंट है। और अगर ये आपका एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है, इसका अगर यहां पर अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोनों में फर्क है, यहां पर डेड से आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड लिए या नाइट्रेट नाइट्राइट लिए और उनको अमोनिया में कन्वर्ट किया, यहां पे नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। दोनों में फर्क है, सो डेफिनेशन का नाम भी अलग अलग है। समटाइम्स दिस अमोनिया वॉलेटिलाइजेज एंड री एंटर्स द एटमोस्फेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया। सो यहां पर क्या रहता है, आपका जो अमोनिया है ये काफी बार आपका एनवायरमेंट में चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके। सो ये आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और नाइट्राइट से फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये आपके यहां काम आएंगे, ओके। नाइट्रोबैक्टर ये आपका यहां पर काम आएगा। सो स्पेसिफिक आपके बैक्टीरिया स्पेसिफिक जगह पर काम आते हैं, ओके। सो यहां पर जो आपका अमोनिया है, इसमें आपने अगर ऑक्सीजन ऐड किया तो ये आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया प्लस H2O, और नाइट्राइट को आपने फिर फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ये आपके बैक्टीरिया की वजह से रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। सो अमोनिया जो है ये नाइट्राइट में सबसे पहले कन्वर्ट होगा बाय नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यूटिलाइज होते हैं विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, और नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होगा ये तो नाइट्रोबैक्टर यहां पर लगेगा। सो दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, और ये आपके कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होते हैं। मतलब ये खाना बना सकते हैं बैक्टीरिया खुद का, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग लाइट, दे आर नॉट फोटो ऑटोट्रॉफ, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। मतलब ये केमिकल्स को खा जाएंगे। सो ये क्या करेंगे, अमोनिया पे अटैक करेंगे और इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। सो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शंस होती हैं आपकी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मींस द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। सो आप अगर यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। और अब आपको देखने को मिलेगा डीनाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। अब नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है और लीव तक पहुंचा सकता है एब्जॉर्ब करके। इन लीव्स ये अमोनिया बन जाएगा और ये फाइनली अमीन ग्रुप में कन्वर्ट होकर आपका अमीनो एसिड में ऐड हो जाएगा। अमीनो एसिड फर्दर आपका प्रोटीन बना लेंगे। सो नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। यानी नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा क्या हुआ, जब आप नाइट्रेट को तोड़कर क्या बना रहे हो, नाइट्रोजन बना रहे हो, तो वो हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, जस्ट इसका उल्टा। सो डीनाइट्रिफिकेशन आपका सूडोमोनास और थायोबैसिलस कर सकते हैं। अब इस पूरे
डायग्राम को गौर से देखना। ओके, यहां पर 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं सो दैट वी कैन गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव आउट ऑफ दिस डायग्राम। हम इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें, इसीलिए हम लोग यहां पर अलग कलर का पेन भी लेंगे, क्योंकि हम लोग हैं 1 नंबर के चित्रकार और हमें रंगों से बहुत प्रेम है। सो हम लोग यहाँ पे अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड पेस सो दैट वी विल नेवर फॉरगेट इट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अलग अलग तरीके से फिक्स हो सकता है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पर थंडरिंग होगी, आपके यूवी रेडिएशन वगैरह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। दैट कैन बी NO, दैट कैन बी NO2, दैट कैन बी N2O, दैट कैन बी नाइट्रेट, एनीथिंग। बट हाँ, नाइट्रोजन पे ऑक्साइड लगा सकते हैं ये लोग। इंडस्ट्रियल में आपका ऑक्साइड भी बन सकता है, अमोनिया भी बन सकता है। बायोलॉजिकल में क्या होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा और ये अमोनिया आगे चल के अमीन ग्रुप बनाएगा और ये अमीन आगे चल के अमीनो एसिड में जाएगा और अमीनो एसिड आगे चल के प्रोटीन में जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो मेन आपको क्या करना है, मेन आपको अमोनिया बनाना रहता है या फिर आपको नाइट्रेट बनाना रहता है। नाइट्रेट आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है। सो एब्जॉर्ब इस फॉर्म में होगा। मोस्टली जो जनरल एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयंस के फॉर्म में रहता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका नाइट्रेट के फॉर्म में करता है नाइट्रोजन। सो यहां पर क्या हुआ, पहली चीज कि आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बनना, ये जो आपका है, इसको आप हर चीज को बोल रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। जहां पे भी नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है इसको आप फिक्सेशन बोल रहे हो। ये इलेक्ट्रिकल है, इससे भी अमोनिया और ऑक्साइड बन सकते हैं। सो दिस इज फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपके जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं, इनसे अगर अमोनिया बन रहा है, इनके अंदर जो नाइट्रोजन थी उनसे अमोनिया अगर बन रहा है, सो इट इज अमोनिफिकेशन। ओके, यहां पर अमोनिया जो बना है इससे नाइट्राइट और नाइट्रेट बनना। सो यहां पर नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास और यहां पर नाइट्रोबैक्टर, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका नाइट्रेशन या फिर आप इसे बोल सकते हो नाइट्रिफिकेशन। और इसका अपोजिट यानी नाइट्रेट से टूटकर आपका नाइट्रोजन बनना, इसे आप लोगों ने बोला डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि सूडोमोनास वगैरह करते हैं। सो इट इज डीनाइट्रिफिकेशन दैट इज डन बाय सूडोमोनास एंड द थायोबैसिलस बैक्टीरियम। समझ रहे हो? सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन डेड वाले से अमोनिया बनना, नाइट्रिफिकेशन अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट बनना, और डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट का टूटकर नाइट्रोजन बन जाना। दैट इज अ साइकिल दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन अब कैसे फिक्स हो ये देखा जाए, यानी कि अब बैक्टीरिया का क्या रोल है। मैंने आपको बताया कि दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कुछ सर्टेन प्रोकैरियोट्स को यानी बैक्टीरिया को ही भगवान ने ये ताकत दी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए। इट इज नॉट अ थिंग विच कैन बी डन बाय एनी प्लांट और एनी एनिमल। सबके बस की बात नहीं है भाई, यहां पे चाहिए स्पेशल, एकदम स्पेसिफिक, और वो है अपना प्रोकैरियोट। क्यों, वो अभी बताता हूं। सो फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ N2, जो कि यार अराउंड 78-79% तो प्रेजेंट है ही ना एटमॉस्फेयर में, सबसे अबंडेंट है। बस यूटिलाइज करने वाला बंदा चाहिए, बंदा है आपका प्रोकैरियोट, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। और सब पे, पूरी दुनिया पे मेहरबानी यही बैक्टीरिया कर रहा है। जिस दिन इसने नाइट्रोजन फिक्स करना बंद कर दिया भाई, लोगों की लंका लग जाएगी। सो इट रिड्यूस द नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आपके नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दें इनटू अमोनिया, तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बोल रहे थे, और ऑर्गेनिज्म अगर कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पर एक एंजाइम बहुत अबंडेंट होता है कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट कर रहा था, मोलिब्डेनम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। सो यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करने हैं नाइट्रोजन पे। सो इसको रिड्यूस करना है हमें, नाइट्रोजन को रिड्यूस करना है। So this machinery is only present in prokaryotic organisms. So in bacteria को specifically हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आई हैव शोन यू अ डायग्राम जहां पर हेटेरोसिस्ट नाम के सेल प्रेजेंट थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला डायग्राम है भाई साहब। हेटेरोसिस्ट आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। ओके, वहां पर हमने देखा था नॉस्टॉक का वो डायग्राम था। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे वहां पे नॉस्टॉक लिखा हुआ है और वो डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा। सो दैट वाज अ नाइट्रोजन फिक्सर। हमने वहां पे पढ़ा था एनाबिना और नॉस्टॉक बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। सो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, इट इज गोइंग टू
convert the dinitrogen into ammonia. So the nitrogen fixing microbes could be free living और symbiotic. ये freely live कर सकते हैं या symbiotic हो सकते हैं, यानी किसी प्लांट के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एरोबिक भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ए फॉर एरोबिक, ए फॉर योर अजोटोबैक्टर, लेकिन ऐसे याद मत करना क्योंकि एना बीना में कंफ्यूज हो जाओगे. सो विल मेक सेपरेट ट्रिक्स फॉर दिस. अभी सिर्फ देख लो कि एरोबिक जो है आपका एजोटोबैक्टर होता है एंड बेजरनिकिया, और रोडोस्पाइरिलम जो आपका होता है ये आपका एनारोबिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपका नाइट्रोजन फिक्स करता है. ओके, सो आपका ये जो रोडोस्पाइरिलम है इज एरोबिक एंड बैसिलस जो है आपका फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करता है. इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स आर एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिकिया, जबकि रोडोस्पाइरिलम इज एनारोबिक. और इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सही बात है, मुझे लगा मैंने कुछ गलत पढ़ दिया. तो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है वो अब देखते हैं. सिम्बायोटिक में क्या होता है, सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ऐसी एसोसिएशन देखने को मिली है. इनमें सबसे जो यूजुअल होती है वो लेग्यूम्स में रहती है. लेग्यूम्स मतलब आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली, यानी आपकी बीन और आपकी पी की फैमिली. ओके, सो मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम आर लेग्यूम बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स की रूट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं. सो आपके रॉड शेप राइजोबियम जो है ये ऐसी रिलेशनशिप बनाते हैं विद रूट ऑफ सेवरल लेग्यूम प्लांट सच एज अल्फाफा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, यानी ओवरऑल आपकी बीन और पी की फैमिली आप इसे कह सकते हैं. सो द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट एज नोड्यूल्स. ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं आपके जो राइजोबियम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसके बारे में हम पूरा का पूरा अभी पढ़ने वाले हैं. सो जो राइजोबियम है ये लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है और उस एसोसिएशन को आप लोग नोड्यूल्स बोलते हो. सो नोड्यूल्स जो है ये रूट पे स्मॉल आउटग्रोथ होती है. अगर आप किसी दाल का पौधा उखाड़ो, इफ यू आर गोइंग टू टेक आउट द पल्स रूट, अगर आप किसी प्लांट को फ्लावरिंग से पहले उसकी रूट उखाड़ कर देखो तो आपको पता लगेगा जो रूट्स हैं उन रूट के ऊपर छोटे छोटे आपके गोले प्रेजेंट हैं. दोज शॉर्ट गोले विल बी द नोड्यूल्स. ये छोटे छोटे जो गोले हैं, दीज स्मॉल राउंड बल्ज्ड थिंग्स आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स. और इन नोड्यूल्स को जब आप काट कर देखोगे, समझ लो आपने एक गोला उठाया छोटा सा और उसको आपने काट कर देखा तो इसका सेंटर जब आपको ऐसे दिखेगा तो इसका सेंटर आपको रेड मिलता है. एंड दिस सेंटर इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेगुमिनस हेमोग्लोबिन, जिसे आप लोग लेग हेमोग्लोबिन बोलते हो. लेग हेमोग्लोबिन की एक खास बात है, लेग हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी ये ऑक्सीजन को प्रेजेंट नहीं होने देता इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर. और सबसे जो बेहतरीन बात है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की कि राइजोबियम जब नाइट्रोजन फिक्स करता है वो अनाएरोबिक कंडीशन में करता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता. सो व्हाट विल हैपन, आपका लेग हेमोग्लोबिन जो है वो यहां पर प्रेजेंट सारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को खा जाएगा, स्कैवेंज कर देगा. सो देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. और अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है तो बेहतर तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर हो पाएगी. सो द माइक्रोब फ्रैंकिया also produce nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants such as ulnus. This is most important example. जो आपका फ्रैंकिया है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ भी एसोसिएशन शो कर सकता है सच एज एल्नस. ओके, सो राइजोबियम विद लेगुमिनस प्लांट एंड फ्रैंकिया विद नॉन लेगुमिनस प्लांट आर फ्री लिविंग इन सॉइल. ये सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं और सॉइल में जब ये होते हैं तो ये आपके एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी. दो इंपॉर्टेंट खास बात है, जब ये बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट हैं तो ये फ्रीली प्रेजेंट है, जिंदा रह सकते हैं, मजे में खा पी सकते हैं और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम कर सकते हैं. लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे ना ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे, तो इसलिए इन्हें लेग हीमोग्लोबिन चाहिए, ना ये फ्रीली रहेंगे, इन्हें लेग्यूम या नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ नोड्यूल्स में बाइंड होना ही है. ये इनकी सबसे खास बात है. सो अगर आप किसी कॉमन पल्स को उखाड़ कर देखोगे तो आपको नियरली स्फेरिकल आउटग्रोथ दिखाई देंगी उस रूट पे जिनका नाम है नोड्यूल्स. और अगर आप उन नोड्यूल्स को कट करोगे तो सेंट्रल पोर्शन आपको पिंक या रेड मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ द लेग हीमोग्लोबिन. ये हम लोग देख चुके हैं. सो नोड्यूल फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है ये अब हम लोग देख लेते हैं.
नोड्यूल फॉर्मेशन में मल्टीपल इंटरेक्शंस होती हैं, यानी बैक्टीरिया और रूट के बीच में कुछ बातें शातें होंगी, राइजोबियम और रूट के बीच में काफी सारी वार्तालाप होगी, जिसके बाद आपके नोड्यूल्स बनेंगे। सो राइजोबियम क्या करते हैं, राइजोबियम रूट के पास, रूट हेयर के पास आके कॉलोनाइज हो जाते हैं, यानी रूट हेयर के पास आके डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और रूट हेयर के साथ और जो आपकी रूट की एपिडर्मिस है उसके अपर सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, रूट हेयर जो है उसको सेंसेशन आ जाती है कि भाई राइजोबियम आ गया, तो घूम जाती है, रूट हेयर कर लेता है कर्ल और बैक्टीरिया को ले लेता है अपने अंदर। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा। एक इन्फेक्शन थ्रेड जब बनेगा तो उससे बैक्टीरिया क्या होंगे, बैक्टीरिया होते हुए उस इन्फेक्शन थ्रेड से चले जाएंगे आपके प्लांट रूट की कॉर्टेक्स में। सो प्लांट रूट की कॉर्टेक्स में होता है नोड्यूल फॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना है कि इनिशिएशन जब होगा तो इनिशिएशन ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन अकर इन द कॉर्टेक्स ऑफ प्लांट रूट। सो जब इन्फेक्शन थ्रेड बना तो सारे बैक्टीरिया पास होकर आपके कॉर्टेक्स में आ गए। दीज बैक्टीरिया रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड इनटू which the differentiation of specialized nitrogen fixation cells occur। यानी कि ये जब आपके मॉडिफाई हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि रूट के कॉर्टेक्स के साथ अटैच है, तो अब रूट जो भी एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट वगैरह, वाटर वगैरह, वो सब बैक्टीरिया को भी मिलता जाएगा और बैक्टीरिया की भी मौज होगी और प्लांट की भी। प्लांट की इसलिए मौज हुई क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने को मिल रहा है बैक्टीरिया की मदद से, और बैक्टीरिया की इसलिए मौज हुई क्योंकि सैप वगैरह खाने को मिल रहा है, पीने वीने को पानी मिल रहा है, एकदम घर पे बैठ के ठंडा चिल्ड एकदम, सो वो भी मजे में है। सो नोड्यूल कंटेन ऑल द एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर बायोकेमिकल कंपोनेंट। नोड्यूल में सब कुछ है जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए, जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज, लेग हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को हटाएगा। एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एन मोलिब्डेनम फेरस प्रोटीन, यानी आयरन और आपका मोलिब्डेनम यहां पर प्रेजेंट रहेगा। एंड इट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कराएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बनता है वो है अमोनिया। अब यहां पर कैसे बना आपका नोड्यूल वो देखो, ये सॉइल है और ये आपका रूट हेयर है। इस रूट हेयर के पास आकर बैक्टीरिया छोटे छोटे जो मैं रेड से बना रहा हूं ये डिवाइड होने लग गए। जैसे डिवाइड हुए आपके यहां पर पता लग गया रूट हेयर को, तो ये कर्ल हो गई, इसने एक हुक बना लिया, एक हुक बना लिया। सो यहां पर इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। इन्फेक्शन थ्रेड मतलब बैक्टीरिया अब जो है आपके बाहर से अंदर के कॉर्टिकल सेल्स में जा रहे हैं। सो कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल में जाकर ये उन सेल्स को डिवाइड होने पर मजबूर कर देते हैं, और इतने डिवाइड होते हैं ये कि एक मैच्योर नोड्यूल बन जाता है। डिवाइड हो रहे हैं तो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिवीजन और आपकी जगह लिमिटेड है तो चीजें कंडेंस हो जाएंगी। जैसे आपकी बॉडी में मतलब कि इन ह्यूमन सेल्स जैसे ट्यूमर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ कैंसर, सिमिलरली यहां पर नोड्यूल बन जाता है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है बेसिकली जगह आपकी बॉडी में लिमिटेड है और सेल्स अनलिमिटेड तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो गांठें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, आपके सेल्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। सेम यहां पे नोड्यूल बन जाएगा। सो डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन अकर इन दिस पर्टिकुलर केस। सो यहां पर रूट हेयर जो है उनके पास जाकर बैक्टीरिया डिवाइड करता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कर्लिंग हो जाती है रूट हेयर की, कॉर्टेक्स तक इन्फेक्शन थ्रेड पहुंचा, बैक्टीरिया जो है मॉडिफाई हो जाता है और रॉड शेप्ड हो जाता है। बिफोर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया ये मॉडिफाई हो जाता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बन जाता है, इसके लिए इसे रॉड शेप होना जरूरी है, ये बात याद रखना। ओके ओके, सो रॉड शेप बैक्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल जो है डिवाइड कर करके नोड्यूल बना लेते हैं। सो रिएक्शन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये नाइट्रोजन है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी लगे तो आपके 2 अमोनिया बने। ओके, एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट हो गया तो 16 एटीपी से आपके 16 एडीपी और 8 जो आपके यहां पर हाइड्रोजन और 8 इलेक्ट्रॉन है इनसे आपके हाइड्रोजन बने और बचे हुए हाइड्रोजन आपके यहां पर लग गए नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, सो आउट ऑफ द 8 हाइड्रोजन, यहां पर 8 हाइड्रोजन में से 2 यहां पे हैं H2 के फॉर्म में और 3 यहां पर हैं 2 अमोनिया के फॉर्म में, तो 6 + 2 = 8। तो हाइड्रोजन तो यहां आ गए, 16 एटीपी के 16 एटीपी यहां आ गए और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां आ गए। कहने का ये मतलब है एक अमोनिया को बनाने के लिए 8 एटीपी चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 अमोनिया बन रहे हैं तो 16 एटीपी आपकी यहां पर लगी हैं। दिस इज द केस। सो एंजाइम नाइट्रोजिनेज ये सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन एंड इसे अनएरोबिक कंडीशन चाहिए रहती हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट रहता है लेग हीमोग्लोबिन, तो जब ये माइक्रो फ्री रहते हैं एरोब्स की तरह
प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज फ्री लिविंग होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आपके सिम्बायोटिक बन जाते हैं और अनएरोबिक बन जाते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर इनपुट ऑफ 8 एटीपी पर अमोनिया, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहां तक आ चुके हैं हम लोग। अब पहले डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। करना क्या है पहले तो आपको ये देखो, N2 में क्या क्या प्रेजेंट है। N2 में आपके 2 नाइट्रोजन है। सो ये 2 नाइट्रोजन आपके ऐसे प्रेजेंट है। आपको इन्हें बनाना है अमोनिया, यानी हर नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगाना है। पहले एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन, और यहां पे बॉन्ड टूटते जाएंगे अकॉर्डिंगली। सो व्हाट हैपन हियर इज दिस इज एंजाइम नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज की बाइंडिंग साइट है। इस बाइंडिंग साइट पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गया। सबस्ट्रेट कौन है? आपका नाइट्रोजन। सो इस नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है अभी तक। अब रिडक्शन हुई, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक एक हाइड्रोजन जब जुड़ा तो रिडक्शन हो गई, 2 बॉन्ड बचे इसके बीच में, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। 2 इसने यहां बना रखे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बन गए। फिर रिडक्शन हुई, 4 बॉन्ड यहां पर बन गए हैं 2 नाइट्रोजन के। सो बीच में एक सिंगल बॉन्ड बचा है सिर्फ, और 2-2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बन चुका है। सो दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन के साथ थर्ड बॉन्ड यहां पर भी आपको पता लग गया। अब यहां पर जब तीसरा हाइड्रोजन ऐड होगा, सो दिस 1 2 3 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो दोनों नाइट्रोजन के बीच का अंतिम बॉन्ड टूट गया, एंड फाइनली ये जो आपके 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं ये रिलीज हो जाएंगे, और आपका फ्री एंजाइम दोबारा से रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजनेज, जो कि दोबारा किसी नाइट्रोजन के साथ बाइंड करके उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अमोनिया। ये एक्चुअल में हैपन होता है यहां पर। नाउ फेट ऑफ द अमोनिया, आपने अमोनिया तो बना लिया, लेकिन करोगे क्या? एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया जो है आपका प्रोटोनेट होता है इस फॉर्म में, यानी नॉर्मल पीएच जो है आपका प्लांट के अंदर जो पीएच है उस पे NH3 की जगह NH4 पॉजिटिव फॉर्म में ये यूजुअली पाया जाता है। सो व्हाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन असिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस, द लेटर आर क्वाइट टॉक्सिक। अमोनियम आयंस थोड़े से टॉक्सिक होते हैं नाइट्रेट के कंपैरिजन में। सो यूजुअली मैंने आपको इसलिए बोला था कि मेनली ये नाइट्रेट के फॉर्म में ही आपके एब्सॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका अमोनियम यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनाया है, तो ये आपका बॉडी में 2 तरीके से यूटिलाइज होगा। पहला, रिडक्टिव अमीनेशन, यानी आप यहाँ पे अमीनेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे अमीन को ऐड कर रहे हो। इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। तो यहां पर क्या हुआ? दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दिस इज अ कीटो एसिड, और इसके ऊपर लग गया है अमोनिया। सो NADPH की प्रेजेंस में ये क्या होगा? ग्लूटारिक एसिड आपका ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा। सो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज यहां पर लगा। डिहाइड्रोजिनेज क्योंकि NADPH यूज हो रहा है, सो डिहाइड्रोजिनेज वर्ड यहां पर यूज होगा। एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसे आप ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हो। सो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामिक एसिड बोलना कोई पाप नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रांस एमिनेशन, यानी अमीनेशन, अमीन तो जुड़ रहा है लेकिन ट्रांस किसी चीज के साथ एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसके साथ होगा? अमीनो ग्रुप जो है कीटो ग्रुप के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। सो ग्लूटामिक एसिड जो है आपका मेन डोनर की तरीके से यहां पर काम करता है। तो ट्रांस एमिनेशन कैसे होगी? दिस इज एन अमीनो डोनर, इसके पास अमीनो ग्रुप है, एंड दिस इज द अमीनो एक्सेप्टर जिसके पास कीटो ग्रुप है। सो यहां पर क्या होगा? ये जो आपका NH3 और H है ये इसके ऊपर चला गया, NH3 और H, और ये जो आपका CO है ये यहां पर चला गया। सो R1 जो है जिसके पास पहले CH और NH3 था, इस R1 के पास अब CO हो गया, यानी जो अमीनो एसिड था ये कीटो एसिड बन गया, और जो आपका कीटो एसिड था R2, इसके R2 पे अब H और NH3 जुड़ गया। सो ये अब एक अमीनो एसिड हो गया। सो अमीनो एसिड बिकेम अ कीटो एसिड बिकम एन अमीनो एसिड, दैट्स व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन। चेंज हुआ है भाई, ट्रांस एक्सचेंज हुआ है, फोकट में कुछ नहीं लिया। लेकिन रिडक्टिव एमिनेशन में क्या हुआ था? भाई आजा मेरे ऊपर ऐड कर दे। ओके, सो बोथ द केसेस आर डिफरेंट। सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स दैट इज एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन, जो आपके इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन, ये बनते कैसे हैं? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से, नाम में ही सब कुछ है। सो ये 2 अमीनो एसिड से बनते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ओके, सो यहां पर जो इनके हाइड्रोक्सिल पार्ट होते हैं बेसिकली, या फिर बेसिकली आप कह सकते हैं जो ग्लूटामीन है इसमें क्या होगा? नॉर्मल अमीनो एसिड से ज्यादा अमीन आपका प्रेजेंट रहेगा। ओके,
सो जो आपके अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, वो आपके एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन बनाएंगे रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उनके अंदर का जो बेसिकली जो मेन पार्ट है एसिडिक पार्ट वो वहां पर रिमूव होगा, शफल होगा, एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन सच अ वे कि उनमें एक एडिशनल अमीन मॉलिक्यूल देखने को मिले। ओके, ऑल राइट। सो यहां पर क्या होता है, कहां पे थे हम लोग, सिंस अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन, अमाइड में एक नया NH2 ग्रुप आया है, सो इसमें मोर नाइट्रोजन होगा देन अमीनो एसिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम वेसल। सो ये जाइलम वेसल के तौर पे जो है ये आगे चल के ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। हमें पता है कि ट्रैकिड एंड वेसल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जाइलम, जो कि चीजों को फ्लो कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वेसल के थ्रू जो है आपका अमाइड्स का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड से ज्यादा नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है। In addition, along with the transpiration stream, the nodules of some plants such as soybean export the fixed nitrogen as urids। यानी सोयाबीन्स में काफी बार आपके ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ साथ आपके यूरिड की फॉर्म में जो है फिक्स नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूरिड क्या होते हैं, यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा रहते हैं और कार्बन कम। सो यूरिड्स के अंदर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है वो आपका बहुत ज्यादा रहता है, मींस दे आर कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। सो इनको भी ऊपर भेज दिया जाता है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ, जिससे कि आगे चल के ये फर्दर यूटिलाइज किए जा सके। फाइनली इट्स ओवर एंड इट्स डन इन वन शॉट। ये मैंने जेन्युइनली वन शॉट में बनाया है, अदरवाइज यार मैं बीच में पानी वानी सुसु वसू करने चला जाता हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और एक शॉट में बनाने का सोचा था, बन गया यार भगवान की दया से। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को इफ़ यू रियली अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो भी कर सकते हो यार वो सारा कर दो, बिकॉज अभी मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने और भूख बहुत लगी है यार ज़ोरदार। मिलता हूँ आपसे कल, जय हिंद। नई वीडियो के साथ प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया धमाकेदार वीडियो मैं लेकर आऊँगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे, और उसमें जो है हम बेसिकली आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।